Hi everyone, very good evening guys. I hope I'm audible and visible to all of you, and where we are going to have a test and discussion, hoping that you have given the test which was comprising of 50 questions, and now you're here with me for discussing these 50 questions. And of course you must have seen the test. Predominantly today what we had was general microbiology, following it up with fungus, that is mycology, and we also wrapped up the parasitology important questions in it, which means that you have another test which will now be on 24th of November, and you already know the two things that are going to come under it. There is going to be bacteriology and virology, and of course predominantly out of 50, 30 to 35 questions will be from bacteriology. Reason being, it's a very weak topic for students. I wanted to discuss as much as we can so that we can revise a lot, and there will be of course 15 to 17 questions on virology. So that's the plan for today, and of course on Monday you have another test which will wrap up. For students who've not seen the previous classes, we had two similar sessions which were conducted for pathology also, so you must go through those 100 questions for path that we discussed. I think we are good to go. I've got a confirmation from all the students, and yes, we can get going over here. So let's get going without a delay, and I am going in order so that you have the same visual memory that you had in videos, that pehle we used to study the microscopes, the stains, then we go to fungus, then we go to parasito. So I'm going in the same order as that. I've rearranged the questions such a way. Okay, so what describes the process of fluorochroming in fluorescent microscope? Basically you have to read the statement for fluorescent microscope. Do you use bright field illumination? Not at all, because what is the light that you use in fluorescent microscope? It is not bright field, it is ultraviolet light that I used. Next, are you going to stain the cells that absorb and re-emit the light at a different wavelength? That was correct, which all of you selected as an answer. Do you use any heavy metals? No. Do you use any prisms and polarizers? Again, no. So I've got an answer. Let me see the photo. Of all the microscopes that you can get a question on, this is one flashcard for every microscope. Like this, of course, I'm not asking you, all of you know कि ma'am ये तो हमारा famous वाला light microscope है. This is what we use all the time. What are the two most important FMG questions? Remember how we were studying in path? With one question we had to finish one topic and 2-3 more questions which can come in the paper. So one topic is microscope, 2-3 more questions क्या है? Light microscope में they will ask you where is the condenser of the microscope present. So for that you must know कि ये वाला square structure क्या होता है? This is the stage, and then they will ask you that where is the condenser of the microscope present? Very good, it is going to be present below the stage. Always remember, where is condenser going to be present? It is going to be present below the stage. What is the next question that you can get, which you know, I mean you have done it 1 million times? In a light microscope, what is the maximum magnification that we can achieve? See, it's like a camera zoom in system. तो कितना magnification? Very good, below the stage answer मिल गया. And maximum magnification का मैम 1000 times zoom in हो सकता है, so that is the 1000x magnification. Perfect. Light microscope का यही दो question है, that is done. If they don't give you light and they give you this kind of a picture, now what microscope does it become? Obviously I can see it, this will become dark field microscope. So they will ask you that कौन सा bacteria दिखता है on dark field microscope? Spiral वाला कौन सा bacteria होता है? This is going to be spirochete. Spirochete bacteria is going to be, see, name any one spirochete bacteria. We'll do it on 24th, but how, name one coming to your mind. For example, I have learnt of treponema, वो syphilis वाला. So whenever in this means that ma'am, when on 24th I will give a test, you have leaked one question, that when they will ask me a question on dark field microscope, they will always ask me something to do with syphilis. That is one standard history. Now coming to, अगर ये बिल्कुल ऐसा दिखा, if it starts looking, the microscope is looking somewhat like a spaceship, हर जगह से it is closed, it's looking like a spaceship that अभी launch होगा and that sort of a thing, that kind of a microscope is what? This is an electron microscope. So why have they made it closed everywhere? Because electrons है ना, they need to maintain vacuum in it, they can't keep it in air. Electrons won't survive like that, so that is why they have created a vacuum. This is also okay. Now finally coming to जो मैंने question पूछा था about fluorescent microscopy. Obviously they will give me a photo which is very fluorescent, green fluorescent. तो कैसे आया? What is the light source that we have used? That was question number 1. Answer हो गया. Okay, so the light source is going from here. As soon as, where am I sitting? My eyes are over here, I am sitting over here on the microscope. And where is the specimen of the patient? Patient की slide कहाँ पर है? यहाँ पर है. Why am I giving you this orientation? Because all your further questions come on this. Number 1, कौन सा light हुआ? UV light हुआ. ठीक है मैम, light जो start होता है, which is the wavelength it is going to be present on? Remember, starting में the wavelength is shorter wavelength. After that it is going to strike
one mirror. Can you tell me what is the mirror which is like very, very important, that without which matlab this microscope cannot exist? It is the dichroic mirror to which the light will go. So I will write over here, shorter wavelength का light होता है, it is going to go to dichroic mirror. Mirror का क्या काम है? Mirror क्या करता है? Light reflect. Mirror will reflect that light onto the specimen over here. So now next question, which is the mirror that you have used in fluorescent microscope? Dichroic mirror. And reflect हुआ shorter wavelength, it has come on the slide. Let's assume slide TB का था, microbiology ना, most common infection in our country TB. तो मैम TB का slide था, तो what color must have you have put? TB के लिए name one fluorescent stain. कौन सा fluorescent stain use होता है for TB? It is ओरामीन एंड रोडा. क्या लिखे? रोडामीन लिखे या रोडानीन लिखे? व्हाट शुड वी राइट ओवर हियर? लेट अस राइट रोडामीन. ऑलवेज रिमेंबर, फॉर माइकोबैक्टीरियम टीबी it will always be rhodamine, because way back in pathology I have already taught you that rhodanine अगर examiner लिखेगा, that is going to be for perfect, that is going to be for copper. Amazing guys. So remember, it is going to be rhodamine, which is for mycobacterium TB. So let's assume shorter wavelength has come to rhodamine, auramine on TB. What will these dyes do? They will now convert the light into which wavelength? They will now convert the light into longer wavelength, and then my eyes will be able to see it over here. Then I will say, हाँ कुछ shine कर रहा है, कुछ fluorescent है. So now go back and read the question. The question was, staining the cells with dyes, auramine, rhodamine, etc., that will absorb, light absorb करेंगे. They will re-emit at a specific wavelength. That is what they were doing. They were absorbing the shorter wavelength and re-emitting at a longer wavelength. That is TB के लिए auramine, rhodamine. Malaria के लिए क्या use करेंगे? Everyone keep answering. पूरा टॉपिक खत्म करो. तो मलेरिया के लिए मैम द डाई दैट इज यूज्ड इज गोइंग टू बी एक्रिडिन ऑरेंज. एंड व्हाट इज द डाई विच इज यूज्ड फॉर अ फंगस? फॉर फंगस इट इज गोइंग टू बी कैल्कोफ्लावर वाइट. टुडे वी विल बी डूइंग फंगस वाला चैप्टर ऑल्सो, सो वी विल रिपीट दिस वंस अगेन. इज द एंटायर माइक्रोस्कोप स्क्रीनशॉट ओके विद एवरीवन? क्वेश्चन 1 के साथ देखा कैसे? दिस इज हाउ यू हैव टू डू योरसेल्फ ऑल्सो व्हेन यू आर डूइंग जीटी एनालिसिस. जीटी एनालिसिस डजंट मीन क्वेश्चन आंसर एंड यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. उसी टाइम अपने नोट्स खोलो, रिवाइज करो. नो वन से you must be doing GTs of many platforms, right? But do you read the explanation of every platform? That will take so much of time. Question आया माइक्रोस्कोप पर, मेरा ठीक हुआ था मैम क्वेश्चन. So I just opened my rapid revision notes and I revised that and I'm good to go. That is your strategy of solving questions. Moving on to the next. This is from your QBank only. There is a microbiology resident who is teaching medical students about gram staining, and the slides are of E. coli as well as Staph aureus. On completing the gram staining procedure, what are the observations? तो सबसे पहले मैम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस तो ग्राम पॉजिटिव होता है. व्हाट इज द कलर ऑफ ग्राम पॉजिटिव? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर गोइंग टू बी पर्पल, सो आई थिंक स्टैफ ऑरियस विल अपीयर पर्पल. ई कोलाई क्या है? इट इज ग्राम नेगेटिव. व्हाट इज द कलर ऑफ ग्राम नेगेटिव? पिंक, रेड, कुछ भी लिखा होगा, तो ई कोलाई विल अपीयर पिंक. सो दिस मीन्स आई नीड टू रिवाइज ग्राम स्टेनिंग पॉजिटिव नेगेटिव. उसके बिना तो यू कैन नॉट गो फॉर अ माइक्रोबायोलॉजी एग्जाम. सो हाउ डिड वी लर्न ग्राम स्टेनिंग गाइज? व्हाट इज द फेमस निमोनिक? कम इन एंड स्टेन. ये सबको पता है, सो आई एम नॉट वेस्टिंग मच टाइम ऑन इट. इसे 30 सेकेंड्स में रिवाइज करते हैं. व्हाट इज कम इन एंड स्टेन? सबसे पहले इफ आई आस्क यू व्हाट इज द प्राइमरी स्टेन दैट इज एडेड, यू विल से क्रिस्टल वायलेट. व्हाई एम आई राइटिंग दिस? बिकॉज नाउ एट एवरी स्टेज यू विल टेल मी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव का क्या कलर रहेगा. दैट इज योर स्टोरी ओवर हियर. सो प्लीज टेल मी व्हाट इज ग्राम पॉजिटिव गोइंग टू बी. मैम अभी तो आपने एक ही कलर ऐड करा ना. दिस मीन्स ग्राम पॉजिटिव विल ऑल्सो बी पर्पल एंड ग्राम नेगेटिव विल ऑल्सो बी पर्पल. अभी तो है ही एक कलर. So there is everything going to be violet, everything going to be purple, as you can see over here. Come in the next stage, you add iodine. What is iodine? Iodine, perfect. I can see amazing answers coming in. आयोडीन इज अ मॉर्डेंट. मॉर्डेंट का क्या मतलब है? फिक्सर, हैमर. तो हैमर करना मतलब जो पर्पल कलर डाला उसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना. सो राइट नाउ आफ्टर दिस ऑल्सो अगेन द ग्राम पॉजिटिव शैल रिमेन पर्पल, द ग्राम नेगेटिव शैल ऑल्सो रिमेन पर्पल. आयोडीन के बाद भी सब पर्पल. कम इन एंड नाउ कम्स द अल्कोहल एसीटोन वाला स्टोरी. व्हाट इज अल्कोहल एसीटोन?
Decolorizer, मैम ये कलर निकालता है किस में से? ग्राम पॉजिटिव डज नॉट गिव द कलर. ग्राम पॉजिटिव सेज आई विल ऑलवेज रिमेन पर्पल. ग्राम नेगेटिव सेज आई विल गिव अवे द कलर, आई विल बी कलरलेस. तो मैम कलरलेस हो गया वो, तो उसके लिए कलर ऐड करो. इन द एंड आई विल ऐड समथिंग कॉल्ड सैफरनिन, एंड यू कैन सी द कलर ऑफ सैफरनिन, इट इज रेड इन कलर. ग्राम पॉजिटिव तो स्टार्टिंग से एंड तक पर्पल का. ग्राम नेगेटिव नाउ बिकम्स रेड और पिंक इन color. So they asked you in the question on completing the gram stain procedure, what is? So gram positive is purple, as you can see over here, and gram negative is pink, as you can see over here. What if I changed the question and I would have written that in this situation you are doing a gram staining and you have added crystal violet and iodine at the this stage, what is the color of Staph aureus and E. coli? See, I have told you at which step. बताओ अगर ये question होता कि only crystal violet and iodine have been added, nothing else has been added, what is the color of these two bacteria, what would you have written? Then your answer would have been both are going to appear purple, because after this stage अभी तो both of them are going to be purple. तो exam में क्या आपका trick word हो सकता है that you have to read at which stage are they asking me the color, at the end of the cycle of the stain or in the middle of the stain. Is that okay? Gram positive purple and gram negative pink हो जाएगा. Now at the end of the next class I will be giving you bacteria, ये सब दोबारा आएगा. So now you will tell me there are some bacteria which say ma'am we are not gram positive also and we are not gram negative also, we are gram poor because we have some cell wall problems जो हम बात करेंगे. What are the 4 bacteria which are said in the gram, जो last 4 chapters है gram poor वाले, उसके अंदर क्या आता है? माइकोप्लाज्मा. कुछ कुछ पता है तो बताते जाओ. माइकोप्लाज्मा में वो फ्राइड एग कॉलोनीज दिखेगा which we will study. I am giving away some questions of next class. माइकोप्लाज्मा का फ्राइड एग कॉलोनीज. नेक्स्ट क्या है? रिकेट्शिया. रिकेट्शिया में बहुत सारे टाइफस फीवर्स आएंगे. देन स्क्रब टाइफस. स्क्रब टाइफस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वी विल स्टडी. कमिंग टू द नेक्स्ट, क्लमाइडिया. ऑफ्थैल में तो आएगा ना क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस. ट्रैकोमा. ट्रैकोमा का क्वेश्चन तो ऑफ्था में आएगा ही आएगा. कैन यू गाइस टेल मी ऑफ्था में ट्रैकोमा के लिए कौन सा स्ट्रैटेजी पड़ा है विच कम्स इन एवरी एफएमजी एग्जाम? आई एम जस्ट गिविंग यू रैंडम क्वेश्चंस कि कौन सा स्ट्रैटेजी ट्रैकोमा का सेफ स्ट्रैटेजी. इफ यू नॉट रेड देन आई एम गिविंग यू अ homework for today which is a non-path micro homework. It is an ophthalmology homework which means कि chlamydia trachomatis में ट्रैकोमा की safe strategy 4 words पढ़ने सिर्फ. safe strategy you have to study. Coming to the last one, spirochetes. Spirochetes तो अभी डिस्कस करा था. ट्रिपोनीमा. ट्रिपोनीमा causes what? It causes syphilis. कौन से माइक्रोस्कोप से देखते हैं? डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप से. So these 4, the last 4 chapters of bacteria, they are said to be gram poor organisms. I think all gram staining done. You've understood question 2. I'm moving on to question 3. Here you have a 34-year-old patient presented to the OPD with productive cough and blood in the sputum and fever, loss of weight. When I say cough, sputum, loss of weight, fever in a setting of an Indian situation, you would be certainly very, very wrong if you're not thinking of TB. The first thing coming to your mind in our country has to be TB. Now moving forward, and they say chest x-ray shows apical nodules, sputum, of course, testing is advised. Identify the causative organism. In such an open-ended, I will always think of TB, and of course in this TB, what is the stain that I will be doing? I will always go in for acid fast stain. What is the other name for acid fast stain? It is going to be the Ziehl-Neelsen stain. Perfect. So now you will realize how questions of the जो general microbiology है ना, the question is very रटने वाला question like Zn stain, gram stain, but they can't give you one-liners, so they will try to waste a little bit of your time. That is why we say retrospective always helps. Retrograde पढ़ो. Why do we say that? Because it doesn't mean that आप question उल्टा पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो. यू आर जस्ट गोइंग थ्रू ऑप्शंस इन 2-3 seconds. जो लास्ट लाइन है, अच्छा कुछ स्टेनिंग का, इफ आई वुड हैव बीन इन योर प्लेस, इमेजिन दिस क्वेश्चन कम्स अप ऑन द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ मी, वो हाउ विल आई स्पेंड द फर्स्ट 2 to 3 seconds, और वो ट्रेनिंग अभी से करो. यू कैन डू दैट ऑन द डे ऑफ द एग्जाम राइट अवे, राइट? यू हैव टू डू दैट राइट नाउ व्हेन यू आर गिविंग एग्जाम्स. रीड. अच्छा कुछ स्टेनिंग पूछा एंड बहुत सारे बैक्टीरिया का नाम है, माइक्रो का क्वेश्चन है, माइक्रो या मेडिसिन. सी नाउ यू नोटिस दैट आउट ऑफ 19 subjects which you were scared about, you have come down to 1 subject. आपके माइंड में जो एंग्जाइटी है दैट ऑटोमेटिकली काइंड ऑफ कम्स लो, दैट यू फील दैट अच्छा आई डोंट हैव टू रिकॉल 19 सब्जेक्ट्स राइट नाउ, आई एम नॉट ओपन एंडेड एंड वेग, आई हैव कम डाउन टू माइक्रो में से क्वेश्चन आया है, बस माइक्रो वाली क्लास को याद रखना है, मैम ने जो पढ़ाया था वहां तक जाना है. इफ इट इज अ मेडिसिन क्वेश्चन तो सर ने जो पढ़ाया था वो वाली क्लास. व्हेन यू विल चैनलाइज योर ब्रेन, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट क्वेश्चंस इजीली याद होते हैं. सो कमिंग बैक टू Zn stain, इसका भी क्या था? क्लास हैज आस्क्ड निमोनिक, तो कंप्लीट कर
दो quickly, let me know. What is the first stain that we add? Carbonyl fuchsin. Carbonyl fuchsin किस color का होता है? Carbonyl fuchsin is going to be red in color. That is why right in the end, the TB that you are going to see, the organism that you are going to see will be red in color because of carbonyl fuchsin. तो मैम उसके बाद उसको hammer करो, mordant लगाओ. What is the mordant? The mordant over here is going to be heat. Can you see? I have put a burner over here. कुछ heating चल रहा है. पिछले question में था. There is acid fast stain with heat fixation. Yes, I have used heat over here. After that comes the decolorizer. कौन सा decolorizer? Acid alcohol. If they ask you in which is the acid that is being used, you will say H2SO4. Sulfuric acid use होता है. तो decolorizer color निकल जाएगा, but TB नहीं छोड़ेगा. TB will say I will to keep my red color. और इधर उधर के bacteria they will leave the color. So what will you put in the background? Contrast बनाना है ना. Background में क्या करा? Blue color. तो कौन सा stain put up करा मैम? Methylene blue. So of course, if they ask you what is the color of the background, it is going to be blue in color. So you know, I've given you this example in videos also, that they will not give you this photo and they will say in Zn stain organism is dash in color, background is dash in color. So if you've seen the photo तभी answer करोगे. Organism is red in color and background is blue in color. क्यों red and blue हुआ? Red color is because of carbonyl fuchsin and blue color is because of methylene blue. But what if इसके अंदर थोड़ा सा हमने change करा, heating वाला step हटा दिया. इफ द हीटिंग स्टेप इज स्किप्ड, मैम हीट नहीं है तो कोल्ड हो जाएगा. दिस इज वेरी वेरी बेसिक कॉमन सेंस. हीटिंग नहीं है तो यू नाउ कॉल इट कोल्ड Zn स्टेन. तो हमने इसका नाम रख दिया कोल्ड Zn स्टेन. कोल्ड का डजंट मीन कि कोल्ड हम माइनस के टेम्परेचर्स में चले गए हैं. नो, कोल्ड जस्ट मीन्स दैट आई हैव स्टॉप्ड द हीटिंग स्टेप. कोल्ड Zn स्टेन इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द किन्योन स्टेन एंड ये एक पर्टिकुलर पैरासाइट्स के लिए किया जाता है विच आर द कॉक्सीडियन पैरासाइट्स. आई हैव ऑलवेज मेड यू लर्न इट लाइक के राइट. कोल्ड Zn का दूसरा नाम किन्योन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. एंड देन व्हाट इज इट यूज्ड फॉर? इट इज यूज्ड फॉर कॉक्सीडियन पैरासाइट्स. अब क्या क्वेश्चन बचा इसमें से? दिस H2SO4 दैट यू आर यूजिंग फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म अलग कॉन्सेंट्रेशन. लिसन वेरी केयरफुली बिकॉज दिस इज द प्लेस वेयर दे विल ट्रिक यू. टीबी के लिए कितना H2SO4 यूज करते हैं? टीबी के लिए T20. तो 20-25%. पहले के क्वेश्चंस में 20% लिखते थे. दीज डेज एग्जामिनर राइट्स 25%. तो एनीथिंग रिटन इन दिस रेंज आई विल मार्क एज माई आंसर. ओके, कमिंग टू एम लेप्रा. आई थिंक दिस यू ऑल नो. हमने कैसे याद किया था? लेप्रा के 5 अल्फाबेट्स, कितना परसेंट H2SO4? 5% H2SO4. एंड व्हाट इज दिस Zn स्टेन नोन एज? 5 वाले को बोलते हैं फाइट. फाइट फोराको स्टेन. Zn स्टेन ही है. आई हैव चेंज द नेम. क्या अच्छा, इफ यू आर यूजिंग 5% तो नाम क्या रख दो? फाइट. 5 का फाइट. Coming to coccidian parasites, also 5%, but that is not known as fight for acostain. उसे बस 5% H2SO4 याद करो. तो what did you learn? कि if they say coccidian parasites के लिए Zn stain करना है, कैसे करोगे? You will say first तो I will add carbonyl fuchsin. I will not do the heating step because for coccidian parasites मैम ने कहा था cold Zn stain. Then H2SO4 में how much will I use? 5%. And then end में I will add methylene blue. Is the variation okay? Coming to Nocardia legionella 1%. एंड सबसे लास्ट स्पोर्स का बिल्कुल मिनिमलिस्टिक H2SO4 रहता है 0.25 0.5 मिनिमल वाला रेंज में याद रख लिया. दीज आर ऑल द थिंग्स फॉर विच H2SO4 विल कम एज अ क्वेश्चन. आई कैन सी अमेजिंग आंसर्स कमिंग इन विच इज ग्रेट. परफेक्ट गाइज. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. एक साइंटिस्ट वाला क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो आएगा. सो दे विल गिव यू समथिंग टू डू विद अ साइंटिस्ट. लाइक ओवर हियर दे आर टॉकिंग अबाउट CRISPR-Cas9 technology. For those who are not aware, what is CRISPR-Cas9? This is a gene editing phenomena. Gene editing, you know, these days they are saying, like we always were told, HIV का कोई क्योर नहीं है, Down syndrome का permanent क्योर नहीं है, genetic diseases a person will be born with it, a person will die with it, कोई permanent क्योर नहीं है. But now they are saying gene editing is possible in a living human being. Imagine a person in front of you with Fragile X syndrome, उसे कैसे ठीक करें? So now they've come with live injections through which they can do corrections in DNA, corrections in genetics. CRISPR-Cas9 technology. So they were also using CRISPR-Cas9 technology in COVID also a lot because COVID में बहुत research चल रहा था ना. It's for the first time we all experienced coronavirus. So then they asked you that who were the scientists who were given a Nobel Prize, and yes, the answer is Madame Carpentier and Madame Jennifer. These were the two chemistry scientists, two female chemistry scientists, Madame Carpentier
एंड जेनिफर. नाउ व्हाट एल्स कैन दे आस्क यू, जो अभी रिसेंटली INICT में पूछा गया था कि ये रैपिड रिविजन वीडियोस में नहीं है बिकॉज वो बस अभी अभी हुआ है 1-2 महीने पहले. सो नाउ नोबेल प्राइज वाज गिवन इन 2025 and that was given for the work in what? That was given for the work in immunosuppression. So remember, immunosuppression में क्या आता है कि मतलब immunity कम. So you will say मैम हम तो अपनी बॉडी में तो we increase our immunity ना. No, we can also decrease our immunity. And which are the cells which decrease the immunity? They are referred to as the T regulatory cells. Yes, so no one will ask you the scientist, but there were 3 scientists involved. There was a female called Shimon, there was a female called Mary, but no one is asking you names for these. They are just asking you कि अच्छा ये INICT में अभी अभी आया था, नवंबर में आया, तो they can ask you because ये बिल्कुल headline वाला news है ना. So latest news they can ask to know that whether you are alive also or you have detached yourself from the world. So yes, there has been a Nobel Prize given right away. हो सकता है ये पूछ लिया जाए अब. Okay with everyone. Moving to the next question. Which of the following does not have a polysaccharide capsule? ये वाला word exam में सबसे commonly miss out होता है. Does not, या फिर all are true except, all of the following are false except, डू नॉट वाले वर्ड्स, ये जो है दिस इज वेयर यू विल मेस अप. तो ये ध्यान से पढ़ना. विच डज नॉट हैव अ पॉलीसैकेराइड कैप्सूल एंड द आंसर इज बैसिलस एंथ्रेसिस. सो नाउ टेल मी दैट विच आर ऑल. पहले तो बेसिक बताओ. कैप्सूल पे इस बार मैंने 2 क्वेश्चन ऐड करे थे बिकॉज 2 में से एक तो आएगा ही आएगा. विच वन कम्स आई डोंट नो बट 1 विल पक्का कम. तो कैप्सूल पे सबसे पहले मैम कैप्सूल के बारे में पढ़ते हैं. विच आर ऑल द बैक्टीरिया. ये कुछ रैपिड रिविजन वाला कुछ मेमोरी आया, विजुअल मेमोरी आया कि रैपिड रिविजन में हाँ मैम कैप्सूलेटेड ऑर्गेनिजम्स के लिए आपने पढ़ाया था प्रिटी नाइस कैप्सूल. सब कुछ नहीं भी याद आया तो बेसिक भी याद आया तो लेट्स सी. प्रिटी में हमने करा था ऑल द बैक्टीरियाज, उनका जो पी वाले मेंबर्स होते हैं दे आर द वंस विच हैव अ कैप्सूल. लेट्स रीड अ लिटिल. स्ट्रेप्टोकोकस कौन सा वाला? स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस नहीं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये पी वाला. देन क्लेब्सिएला कौन सा? क्लेब्सिएला पी वाला निमोनिये. बॉर्डरटेला जो वूपिंग कफ कराता है ENT में वूपिंग कफ, बॉर्डरटेला पी वाला. पर्ट्यूसिस. विब्रियो कॉलरा नहीं, विब्रियो कॉलरा नहीं मैम, विब्रियो पैरा हिमोलिटिकस. क्लॉस्ट्रिडियम टेटनस नहीं, क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस. यर्सीनिया पेस्टिस. तो ये तो हो गया सारे PPP वाले बैक्टीरिया, दे आर ऑल गोइंग टू हैव अ कैप्सूल. उसके बाद यू विल रियलाइज कि जितने भी मेनिंजाइटिस कराते हैं जिनको ब्रेन में जाना है, जैसे N फॉर नाइस फॉर नाइसीरिया कौन सा वाला? मेनिंगोकोकस, नाइसीरिया मेनिंजाइटिस. I से क्या है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बच्चों में क्या कराता है? मेनिंजाइटिस. एंड देन कौन सा फंगस? क्रिप्टोकोकस कॉजेस व्हाट? उसका पूरा नाम क्रिप्टोकोकस कॉजेस मेनिंजाइटिस. तो ये जितने भी मेनिंजाइटिस वाले बैक्टीरिया है दे आर ऑल्सो गोइंग टू हैव अ कैप्सूल. कमिंग टू द नेक्स्ट. प्रिटी नाइस कैप्सूल में ए से क्या आएगा मैम? बैसिलस एंथ्रेसिस. एनी वन हु नोज कि ये जितने भी कैप्सूल्स हमने पढ़े, पहले तो जल्दी से रिवाइज करो. प्रिटी मतलब सारे PPP वाले. प्रिटी नाइस कैप्सूल्स में मैम नाइस तो नाइसीरिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड क्रिप्टोकोकस. नहीं भी याद रहा तो एटलीस्ट मेनिंजाइटिस वाले बैक्टीरिया एंड फंगस दे आर ऑल कैप्सूलेटेड. एंड हमारा डेडली वाला बैसिलस एंथ्रेसिस. रिमेंबर इसमें से ये क्वेश्चन आई आस्क्ड यू, जितने भी आपने कैप्सूल्स पढ़े ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ व्हाट? पॉलीसैकेराइड. बट ये जो डेडली वाला है बैसिलस एंथ्रेसिस दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड. सो विच डज नॉट हैव अ पॉलीसैकेराइड कैप्सूल, इट इज गोइंग टू बी बैसिलस एंथ्रेसिस. यू नो दे विल नॉट राइट द वर्ड पॉलीपेप्टाइड. कौन सा वाला पेप्टाइड? अगर ऐसे थोड़ा और डिटेल में जाके दे वांट टू आस्क मी अ क्वेश्चन, दे माइट राइट समथिंग लाइक पॉलीग्लूटामेट. एंड यू आर वंडरिंग कि मैम ने तो पॉलीपेप्टाइड पढ़ाया था, बट देन प्लीज रिमेंबर ग्लूटामेट, अमाइनो एसिड, वो भी तो वही है ना पेप्टाइड. तो उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा उसका नाम बदला बट द कॉन्सेप्ट इज द सेम. दे राइट पॉलीपेप्टाइड, दे राइट पॉलीग्लूटामेट. कुछ कंफ्यूजन नहीं है, इट्स द सेम थिंग. कमिंग बैक, कैप्सूल्स हो गए, उनका कॉम्पोजिशन हो गया. एक और क्वेश्चन था कैप्सूल के ऊपर विच वॉज दिस. दे आस्क्ड यू देयर इज अ 45-year-old मेल who presents with number 1 fever and there is an eschar on his arm after handling animal hide. Animal we know, hide का क्या मतलब होता है? hide मतलब skin.
जो भी प्रॉब्लम हुआ, ही टच्ड एनिमल स्किन एंड उसके बाद उसको एक लीजन हुआ है एंड देर इज फीवर, दे विल आस्क यू विच मेथड इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द कैप्सूल ऑफ द कॉजेटिव एजेंट. सो सबसे पहले ओवर हियर आई कैन सी समथिंग कॉल्ड इंडिया इंक. ये हम थोड़ी देर में फिर से पढ़ेंगे. इंडिया इंक इज यूज्ड फॉर विच फंगस? इट इज यूज्ड फॉर क्रिप्टोकोकस. मैम क्रिप्टोकोकस तो अभी अभी आपने बताया, इट कॉजेज मेनिंजाइटिस. ये एनिमल स्किन वाला तो कोई सिचुएशन इसमें होगा ही नहीं. लैटिक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट इज ऑल्सो फॉर क्रिप्टोकोकस, वो मेनिंजाइटिस है, इसमें नहीं फिट हुआ. कमिंग टू दीज टू रिएक्शंस, मैकफेडियन एंड क्वेलंग, आंसर इन दोनों में से है. एग्जाम में भी ऐसे ही होगा. दो ऑप्शन तो जो थोड़ा थोड़ा भी पढ़ के गया है वो रूल आउट कर लेगा. फंसोगे हमेशा दो ऑप्शंस के बीच में, एंड दैट इज़ वेर यू नीड डेप्थ ऑफ नॉलेज कि आपने कितना पढ़ा, कितने क्वेश्चन सॉल्व करे, देन यू विल बी एबल टू रूल आउट. तो डिजीज़ कौन सी बनाई? कोई डिजीज़ याद आ रही है? हाइड वाली, एनिमल स्किन वाली, उसका नाम है हाइड पोर्टर डिजीज़. व्हाट इज़ हाइड पोर्टर डिजीज़? कि मैम ये तो हमें पता है, हाइड मतलब एनिमल की स्किन, पोर्टर का क्या मतलब होता है? पोर्टर इज कूली. सो देर आर पीपल हु बेसिकली, जो लेदर इंडस्ट्री है उसमें एनिमल स्किन के बंडल्स बनते हैं, वर्कर्स होल्ड इट ऑन देयर नेक, वो पूरा बंडल उठा के कूली की तरह, लाइक अ पोर्टर दे वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो मतलब एनिमल स्किन इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद देयर नेक, इट इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद देयर हैंड्स, इट इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद देयर शोल्डर्स. तभी उसका जो एस्चर हुआ वो आर्म पे हुआ, बिकॉज एनिमल स्किन का टच हुआ था. सो व्हाट इज हाइड पोर्टर डिजीज? कौन सा बैक्टीरिया ट्रांसफर हुआ? बैसिलस एंथ्रेसिस. फॉर द कैप्सूल ऑफ बैसिलस एंथ्रेसिस विच इज द रिएक्शन दैट वी सी? मैकफेडियन रिएक्शन. तो यहीं पे कंप्लीट करते हैं ना. ओवर हियर व्हाट आई कैन सी कि मैम एंथ्रैक्स में एक चीज अलग था, दैट इट वाज हैविंग अ पॉलीपेप्टाइड कैप्सूल. दूसरा, अगर मुझे वो कैप्सूल देखना है, वेरी गुड, आई एम गोइंग टू सी अ मैकफेडियन रिएक्शन. तो क्या होता है मैकफेडियन रिएक्शन? आई विल सिंप्लीफाई, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें मैकफेडियन भी पढ़ना है और फिर क्वेलंग भी पढ़ना है. इसी फ्लैश कार्ड में खत्म करते हैं. आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि अगर आज 50 क्वेश्चन है तो यू विल बी रिसीविंग नॉट मोर देन 60 स्लाइड्स, जो है वो एक एक फ्लैश कार्ड में है. बिकॉज माइक्रो है ना, जितने पेजेस बढ़ेंगे यू विल स्टार्ट फीलिंग कि अच्छा ओ माय गॉड उतना ज़्यादा पढ़ना है. सो आई ट्राइड माई बेस्ट कि 50 क्वेश्चन को हम 50-60 स्लाइड्स में ही रखें. नाउ कमिंग टू हाउ टू सी अ कैप्सूल, लाइक यू सेड मैकफेडियन रिएक्शन. कैसे देखा मैम? व्हाट इज मैकफेडियन रिएक्शन? पैथ माइक्रो में क्या करते हो? यू ऐड कलर, पिंक, ब्लू, ग्रीन, येलो, कुछ ऐड करो, दिख जाएगा. सो व्हाट हैव आई एडेड टू द कैप्सूल? आई हैव एडेड अ स्टेन कॉल्ड पॉलीक्रोम मेथिलीन ब्लू. तो मैकफेडियन रिएक्शन में मैंने क्या करा मैम? मेथिलीन ब्लू ऐड कर दिया, कैप्सूल दिख जाएगा. ऑब्वियसली इफ दे आस्क यू कैप्सूल कौन से कलर का होगा, कुछ ब्लूइश पर्पल कलर, ब्लूइश का रेंज में होगा. तो व्हाट डिड यू डू? मैकफेडियन रिएक्शन में मेथिलीन ब्लू ऐड करा, मैकफेडियन रिएक्शन हो गया. बट वेयर विल आई बी यूजिंग द क्वेलंग रिएक्शन? Can I say in simple words, Macfadyen reaction, if I'm saying I'm using for Bacillus anthracis, can I twist and say Macfadyen reaction is for polypeptide capsules? ऐसा लिखा आया तो समझ जाओगे. Macfadyen reaction anthrax के लिए मतलब it is for polypeptide capsules. तो what is for polysaccharide capsules? For polysaccharide capsules we have the usual, तो ज़्यादा तो polysaccharide capsules है ना. For that we have the Quellung reaction. What is the Quellung reaction? कैसे याद किया था? Quellung is swelling. What is Quellung? Quellung is swelling. Swelling का मतलब बैक्टीरिया के पास क्या है? कैप्सूल. कैप्सूल में क्या होता है? एंटीजन होता है मैम. What will you add? I will be adding an antibody. वो इफ़ आई नो कि अच्छा यहाँ एंटीजन है तो व्हाट विल आई डू? आई विल ऐड एंटीबॉडी, एंड एज सून एज द रिएक्शन विल अकर देयर इज गोइंग टू बी स्वेलिंग ऑफ द कैप्सूल. सो नाउ कैन यू रिमेंबर इन सिंपल वेज के क्वेलंग में स्वेलंग होगा एंड मैकफेडियन में मेथिलीन ब्लू यूज होगा. इज दैट ऑल गुड विद एवरीवन? बिकॉज देन आई एम रेडी टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ तो पॉलीपेप्टाइड एंथ्रैक्स था तो मैकफेडियन. अगर कोई निमोनिया का केस होता या कोई और बैक्टीरिया होता, पॉलीसैकेराइड कैप्सूल वाला होता, तो आई वुड हैव सिलेक्टेड Quellung reaction. Moving on to the next question. एक तो मोटिलिटी के बिना तो we have to do ना, मोटिलिटी के बिना तो we can't go forward with any GT. तो I have not given you a separate slide, इसी में लिख के बता दो. As soon as I say twitching motility, T for T, twitching motility is going to be seen with ट्राइकोमोनाज. एंड इसे कैसे याद करोगे? T for T. ट्विचिंग जैसे मसल ट्विच, कभी कभी आंख फड़कती है ना, वो ट्विच होता है, वो मसल ट्विच जो होता है, वैसे टाइप का मोटिलिटी इज शोन बाय ट्राइकोमोनाज.
phenomena. If they don't want to write twitching motility, they will write jerking motility, वो भी झटके झटके में होना, so that is the same thing. Okay, coming to Giardia lamblia, we had learned गिरता हुआ leaf. गिरता हुआ leaf is what? It is the falling leaf motility. Very good, amazing. Coming to examiner का favorite listeria. Listeria is tumbling. Tumbling जैसे all of you have seen this. You must have seen one of your friend always getting drunk and falling left, right, कहीं भी सीधा नहीं चल पाते. तो that drunk motility, tumbling motility is listeria. But एक FMG एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था कि ये जो ड्रंक होने का है that is at a specific temperature. Tumbling motility will be present at a temperature of 20 to 25 degrees. 20s के टेम्परेचर में होगा, but it will not be seen at a temperature of 37 degree. And how did we learn this? How did we learn this? We said कि अच्छा मैम tumbling मतलब you said वो drunk वाला motility, तो 20s की एज में तो liver साथ दे देगा, you can afford to get drunk. 30s की एज में liver साथ नहीं देगा, so you cannot afford to get drunk. So that is how we learned it कि it will fall at 20s, it will not fall at 30s. Coming to the last, Vibrio. Vibrio के लिए तो I'll just make a star over here, क्योंकि वो shooting star motility, या तो shooting star लिखेंगे या फिर darting, मतलब बहुत जल्दी से जाता है, टूटता तारा, shooting star, no one can see it, it goes so fast. या फिर वो जो bullseye में आप डार्ट लगाते हो, anything that goes very fast, वो fast वाला जाने वाला बैक्टीरिया is Vibrio. Is that okay with everyone? तो क्या बचा, एक मोटिलिटी बची है जो क्वेश्चन में नहीं है, and that motility is the swarming motility. What do you mean by swarming? Going round round round, ऐसे concentric circle में अगर बैक्टीरिया जा रहा है तो that is swarming. Where all is swarming motility seen? So you see, now in one slide you have done photo also, you have done question also, and you have finished your theory also. इस तरीके से अपने notes को भी concise करना शुरू कर दो. You have roughly let's say 2 months left अगर कहें तो you have to make sure that everything is coming under one page, half a page, one slide. ऐसा नहीं कि हर टॉपिक के लिए 4 पेज अभी बैठ के पढ़ना है, तो अब नोट्स तो नहीं बनेंगे. What you can do is when you're reading, take a highlighter, start highlighting. Highlighting means not 30 lines in one page. Highlighting means that you're putting up let's say 3 or 4 words per page कि अच्छा आखिरी के एक हफ्ते में हर पेज में से मुझे 4 words पढ़ के जाने. So coming back, swarming is seen number 1, yes it is seen with Proteus. उसके आगे कौन सा? Vibrio. Remember VP, that is Vibrio parahemolyticus. फिर C से तो favorite सबका Clostridium tetani, tetanus वाला, and S is going to be for Serratia. These are all the 4 bacteria that are going to show this गोल वाला swarming motility. Perfect. Moving on to the most complicated question that I gave you today, and this is also from the Q Bank. ये वैसे तो I usually teach to INICT students, but then I realized कि topic तो FMG का ही topic है. Just because इसका language difficult है, so we have started putting it in the INICT Q Bank, but that is wrong, because FMG exam का भी language आजकल बहुत twisted है. You know, there are sometimes when students come back to us saying, मैम question तो तब समझ में आता है जब language और English समझ में आती, because they have started giving you very complicated English terms, they have started giving you very complicated way of framing a question. तो हो सकता है आपको टॉपिक तो आता हो, बैक्टीरियल जेनेटिक्स तो पढ़ा था, बट उन्होंने लैंग्वेज ऐसा लिखा दैट मैम आई कुड नॉट सॉल्व. सो गेट यूज्ड टू सॉल्विंग सच क्वेश्चंस आल्सो. लेट्स स्टार्ट. व्हाट आई विल डू, रादर देन रिवाइजिंग इट फ्रॉम हियर, एक बार आप मुझे रिविजन कर दो पूरे टॉपिक का, एंड देन हम यहाँ आके फिट इन कर देंगे, राइट? तो रिविजन में क्या है, बैक्टीरियल जेनेटिक्स, ये जो भी इन्होंने लिखा, ये F प्लस माइनस एटसेट्रा, ये कौन से वाले जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं? दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग टू डू विद conjugation. And conjugation कैसे होता है? Whenever there are कनेक्शन, कॉन्जुगेशन मतलब कनेक्शन, दो बैक्टीरिया के बीच में क्या बनाना है? दो बैक्टीरिया के बीच में मैम कनेक्शन बनाना है. दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेशन. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? लेट्स अज्यूम, तो ये मैंने एक बैक्टीरिया बनाया, अभी ओरिएंट हो जाते हैं. ये एक बैक्टीरिया बनाया, इस बैक्टीरिया में मैम यू हैव मेड द DNA ऑफ द बैक्टीरिया. ये एक और बैक्टीरिया बनाया, यू हैव मेड द DNA ऑफ द बैक्टीरिया. ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? दिस बैक्टीरिया हैज़ फर्टिलिटी, फर्टिलिटी फैक्टर है, तो इसलिए इसको क्या बोला? F प्लस. इस बैक्टीरिया के पास फर्टिलिटी फैक्टर नहीं है, तो व्हाट इज दैट नोन एज F माइनस. तो अगर इसको अपना फर्टिलिटी फैक्टर ट्रांसफर करना है तो इट विल हैव टू मेक अ ट्यूब इन बिटवीन. इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज अ कॉन्जुगेशन ट्यूब. तो एक कनेक्शन बनाया, एंड नाउ दिस फर्टिलिटी फैक्टर विल बी एबल टू गो एंड विल बी एबल टू गो टू दिस बैक्टीरिया. बट टेल मी समथिंग,
कट एंड पेस्ट हुआ या कॉपी एंड पेस्ट हुआ? कट एंड पेस्ट मतलब यहाँ से गायब और अब यहाँ पे आ गया, कट एंड पेस्ट हो रहा है, या फिर कॉपी के यहाँ तो रहेगा, वन कॉपी ऑफ दिस विल नाउ गो एंड सिट ओवर हियर। रिमेंबर कॉपी एंड पेस्ट, ये तो यही रहेगा, दिस इज नॉट गोइंग, इट विल डबल, एक कॉपी बनेगा एंड द कॉपी इज नाउ गोइंग टू गो एंड सिट ओवर हियर। सो दैट मीन्स दैट टूवर्ड्स द एंड दोनों के पास एफ है। स्टार्टिंग में एक के पास था और एक के पास नहीं था, बट टूवर्ड्स द एंड व्हाट हैज हैपेंड, बोथ ऑफ देम हैव स्टार्टेड हैविंग द फर्टिलिटी फैक्टर। इज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन ओके विद एवरीवन? यस। तो पहले देख लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय, एक यहाँ पे एफ प्लस था मैम, एक यहाँ पे एफ माइनस था, मुझे दोनों का मतलब समझ आ गया। अब समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एच एफ आर। एच एफ आर का मतलब, ये स्टोरी खत्म, इस स्टोरी को साइड कर दो, अब दोबारा चलते हैं। देर इज अनदर बैक्टीरिया, बट यहाँ पे आई सॉ पहले तो डीएनए अलग था, एफ अलग था। इन दिस बैक्टीरिया व्हाट हैपेंड, दीज टू थिंग्स डिसाइडेड टू एंटर इनटू अ रिलेशनशिप, सो दैट इज नोन एज HFR। मीन्स डीएनए हो गया ये ब्लू वाला, और ये जो रेड वाला है दैट इज द फर्टिलिटी, तो रिकॉम्बिनेशन। HFR का फुल फॉर्म क्या है? इट इज हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। नाउ टेल मी, जब ये आपस में जुड़ गए, फेविकॉल से जुड़ गए, दे एंटर्ड इनटू अ रिलेशनशिप, विल दे बी एबल टू अलाउ सोलो ट्रैवल? विल दे बी अलाउड कि अकेले घूमने चले जाओ, सोलो ट्रैवल चले जाओ? नहीं मैम, रिलेशनशिप में तो साथ साथ ट्रैवल करते हैं, नो सोलो ट्रैवल। तो नाउ विल द फर्टिलिटी फैक्टर बी एबल टू गो एंड एंटर इनटू द अदर बैक्टीरिया? नो। सो दैट मीन्स कि स्टार्टिंग में तो एक बैक्टीरिया क्या था? HFR, दूसरा बैक्टीरिया क्या था? F माइनस। एंड में कैन आई से कि HFR वही रहा और F माइनस ही रहा। F माइनस डिड नॉट रिसीव एनी काइंड ऑफ फर्टिलिटी फैक्टर फ्रॉम देयर। इज दैट ओके विद एवरीवन? यस। नाउ कमिंग टू, तो हमने ये भी समझ लिया, वी हैव ऑल्सो अंडरस्टूड HFR। नाउ थर्ड सिचुएशन, ये F डैश क्या है? F डैश नहीं बोलते, दिस इज नोन एज F प्राइम, दैट इज हाउ यू कॉल इट। व्हाट इज F प्राइम? अब सिचुएशन नंबर 3 पर आते हैं। पहले तो क्या हुआ था यहाँ पे? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के बाद क्या होता है? ब्रेकअप। सॉरी फॉर बीइंग सो नेगेटिव इन लाइफ, बट रिलेशनशिप का नेक्स्ट स्टेज क्या है? ब्रेकअप है। तो नाउ पहले रिलेशनशिप हुआ, अब ब्रेकअप कराते हैं। सो नाउ डीएनए अलग, राइट, एंड रेड वाला फर्टिलिटी वाला अलग, बट ब्रेकअप के बाद दे सेड कि अच्छा दिस पर्सन गिव मी सो मेनी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, तो गिफ्ट्स थोड़ी ना वापस होती है, गिफ्ट्स तो साथ लेके चले जाओ। तो फर्टिलिटी ने कहा कि थोड़ा थोड़ा जो गिफ्ट मिला था, वो गिफ्टिंग वाला जो पोर्शन है वो मैं अपने साथ लेके, आईफोन मिला था तो आईफोन साथ लेके चला जाता हूँ। दैट इज वॉट फर्टिलिटी हैज डन। सो कैन यू सी, ये प्योर फर्टिलिटी नहीं है, दिस इज गोइंग टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ द डीएनए ऑल्सो, एंड दैट इज वॉट यू कॉल एज F प्राइम। नाउ इमेजिन इफ दिस विल travel, what will travel to the other bacteria? Is it only F or is it F prime? Ma'am, the entire thing will copy and go next. So can I say that starting में क्या था? Starting में it was F prime. दूसरा वाला बैक्टीरिया क्या था? दूसरा वाला बैक्टीरिया had nothing. But in the end, can I say both of them will become वेरी गुड, F प्राइम F प्राइम। सो आई रियलाइज्ड, अगर स्टार्टिंग में F प्लस था तो दोनों F प्लस, स्टार्टिंग में F प्राइम था तो दोनों F प्राइम। द ओनली टाइम इट विल नॉट चेंज इज व्हेन देयर वाज अ रिलेशनशिप। कॉम्प्लिकेशन कहाँ आएगा? सिर्फ रिलेशनशिप में आएगा। नाउ कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन, अब यहाँ से जब ऐसा क्वेश्चन आए तो मैम हाउ शुड आई मैच? ऐसे थोड़ी कि मैं HFR की एक एक स्टेटमेंट ढूंढूं, नहीं, गो अदर वे राउंड, स्टार्ट रीडिंग दीज, कॉम्प्लिकेटेड वाली लाइन पढ़ो एंड उल्टा मैच करो। सो लेट्स रीड, there is a bacterial cell that lacks the F plasmid and can only act as a recipient, lacks the F plasmid, तो इसको किससे मैच कर दे? This becomes F minus. Let's move forward. There is a bacterial cell with an F plasmid that has excised from the chromosome and carried some chromosomal genes. उसने DNA में से excise करके iPhone निकाल दिया. What do you want to call it? I want to call it F prime. Coming to the next, bacterial cell can act as a donor having F plasmid incorporated into the DNA. F plasmid और DNA का recombination हो गया. What do you want to call it? HFR. अब बचा क्या? There is a cell with F plasmid separate from the DNA, मतलब F अलग DNA अलग. What is that known as? That is known as F plus. So now you realized कि ऐसे ऐसे ढूंढने लगते हैं तो it was very difficult. I decided take the tough statement and now figure out कि उसमें क्या fit हो रहा है. So you realized कि मुझे आता तो था, ये मेरा पढ़ा हुआ टॉपिक था, बट जब मुझे ये 1 मिनट में सॉल्व करना पड़ा, that became the real challenge. So how should I do such questions? हमेशा आप easy वाले ऑप्शन को पहले पकड़ते हो. The trick of such questions is कि जो लंबा वाला स्टेटमेंट होता है ना, टफ वाला, उसको पहले पकड़ो, because if you solve 1 or 2 also, बाकी दोनों अपने आप सॉल्व हो जाएंगे. मैच द
फॉलोइंग में यही है ना, 2 भी आपने सॉल्व कर लिए तो बाकी 2 तो फ्रॉम द ऑप्शंस यू विल बी एबल टू फिगर आउट. Let's move on to the next question. You know this question is going to come in the exam. ये वाला image आना ही आना है. There is a second year medical student. There is a viva going on in the microbiology department, and they are saying that there is a device and you have to give any one usage that is sterilized. वेरी गुड. मोस्ट ऑफ यू सेड हॉट एयर ओवन. आई होप जल्दी जल्दी में कल्चर मीडिया नहीं मार्क करा. इट वॉज हॉट एयर ओवन एंड ग्लासवेयर. कल्चर मीडिया किसके अंदर होता है? कल्चर मीडिया इज डन इन ऑटोक्लेव, जो हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे. बट नाउ अभी वी सेड कि दिस तो लुक्स लाइक अ हॉट एयर ओवन ना, ये तो लग ही रहा है. दिस इज लुकिंग लाइक एन ओवन, तो जिसमें बेकिंग होता है, तो उस टाइप का हॉट एयर ओवन लग रहा है. तो हॉट एयर ओवन का कैन यू टेल मी टेम्परेचर क्या होता है? इट इज़ 160 डिग्री सेंटीग्रेड एंड यू हैव टू कीप एवरीथिंग इनसाइड इट फॉर 2 hours. नाउ नेक्स्ट यू विल टेल मी अच्छा क्या क्या रख सकते हैं इसके अंदर. सो एज आई सेड यू विल कीप एनीथिंग दैट इज मेड अप ऑफ ग्लास. मान लेते हैं यू हैव अ टेस्ट ट्यूब, और लेट्स अज्यूम यू हैव ऐसा कोई फ्लास्क है, कुछ भी लैब का ग्लास वाली चीज़ है ना, दैट यू विल गेट. बट टेस्ट ट्यूब को बंद कैसे करते हैं मैम? टेस्ट ट्यूब को बंद कॉटन से करते हैं, फ्लास्क को बंद कॉटन से करते हैं. तो इफ़ यू वांट टू पुट एनी कॉटन इनसाइड हॉट एयर ओवन यू कैन. देन आता है, येस मेनी ऑफ यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग कि मैम कुछ भी ऑयली, ग्रीजी, लिक्विडी या फिर डस्टी. वेरी गुड. तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब एग्जाम में पूछा गया देर आर सम ऑयल्स. नाम गाना क्या याद करा? इट्स अ सॉन्ग. ऑयली, ग्रीजी, लिक्विडी, डस्टी, ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी. कोई भी ऑयल है किस में क्लीन करोगे? हॉट एयर ओवन. कोई भी ग्रीजी मटेरियल है, हॉट एयर ओवन. वैक्स के बारे में पूछा, जैसे लिक्विड पैराफिन, कोई भी लिक्विड है तो मतलब हॉट एयर ओवन. कोई भी डस्टिंग पाउडर्स है, कोई भी पाउडर्स है, डस्टिंग मटेरियल है, हॉट एयर ओवन. सो ऑयली, ग्रीजी, लिक्विडी, डस्टी सब कुछ कहाँ चला गया? हॉट एयर ओवन में चला गया. ओके विद एवरीवन. हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर हमेशा याद रखना 160 डिग्री 2 hours. बट हाउ डू आई गेट टू नो कि ये सच में 160 डिग्री तक गया था? सच में इट वर्कड फॉर 2 hours. इज देयर एनी कंट्रोल? विच इज़ एग्जैक्टली द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई कम टू, कि ये सारे जो टेक्निक्स है इनका कंट्रोल मेथड क्या होता है. सो यू हैड टू डू अनदर. नाउ यू विल रियलाइज दिस इंटायर, ऑल्दो यू कॉल्ड इट लाइक अ मॉक टेस्ट और अ GT, इट वॉज इंटायरली प्लेस्ड इन एन ऑर्डर. कि आप एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में, जैसे आप रैपिड रिविजन के नोट्स पढ़ते हो ना, तो जिस तरीके से स्लाइड बाय स्लाइड आ रहा था, फ्रॉम एवरी स्लाइड आई हैव प्रिपेयर्ड अ क्वेश्चन. कि लास्ट वाले वीक में जब रैपिड रिविजन भी बहुत बल्कि लगेगा कि कैसे खत्म करें, देन यू विल रीड दीज 50 स्लाइड्स एंड यू विल रियलाइज कि हमें एक ओवरव्यू मिल गया पूरे रैपिड रिविजन नोट्स का. कमिंग टू द स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स, हॉट एयर ओवन का बताओ. परफेक्ट. मेनी ऑफ यू सेड बैसिलस सबटिलिस या बैसिलस एट्रोफियस, सो आई विल मैच इट एज सून एज यू सेड दिस. ठीक है. ओके. कमिंग टू ऑटोक्लेव, एंड जो ऑटोक्लेव का कंट्रोल होता है वही प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन का कंट्रोल होता है. ऑटोक्लेव का तो टेम्परेचर काफ़ी हाई है, 121 डिग्री. तो ऑटोक्लेव एंड प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन के लिए कुछ हाई वाला, थर्मो वाला, जियोबैसिलस स्टेरोथर्मोफिलिस. थर्मो वर्ड आ जाएगा, बस उतने से याद रखना. कमिंग टू नेक्स्ट, फिल्ट्रेशन, मेम्ब्रेन. ये तो पूछेंगे ही ना. आजकल तो एयर फिल्टर्स, थैंक्स टू द वंडरफुल एयर क्वालिटी, या फिर वाटर फिल्टर्स हम यूज़ करते हैं, थैंक्स टू द वंडरफुल वाटर वी हैव विद so much of pollutants. तो फिल्टर तो ज़रूरी है, पानी में भी, एयर में भी. तो फिल्टर काम कर रहा है या नहीं? व्हाट इज़ द कंट्रोल? तो मैम फिल्टर का जो साइज़ होता है वो तो बहुत छोटा होता है. फर्स्ट कैन यू टेल मी एवरेज साइज़ कितना होता है फिल्टर का? 0.22 माइक्रॉन्स. छोटा सा PYQ साइड पे हो गया. फिल्टर का साइज़ कितना? छोटे छोटे जो होल्स होते हैं 0.22 माइक्रॉन. तो आई हैव टू यूज़ अ कंट्रोल जो बिल्कुल छोटा सा बैक्टीरिया होगा. विच इज़ द छोटा सा बैक्टीरिया दैट वी हैव ओवर हियर? इट इज़ गोइंग टू बी Serratia. This might have come as a shocker to you because mostly what students learn for this is going to be Bacillus or B Brevendimonas, या B भी याद रखो चलेगा. एंड यू हैव लर्नड B diminuta. तो मैम हमने याद करा था कि फिल्टर के लिए माइन्यूट सा बैक्टीरिया लगेगा. यस, बट कोई भी छोटा, द कॉन्सेप्ट इज कोई भी छोटा बैक्टीरिया चलेगा. सो इफ दे डोंट राइट माइन्यूटा वाला बैक्टीरिया, Serratia इज ऑल्सो अ वेरी छोटा बैक्टीरिया. बट लेट्स अज्यूम आपको नहीं पता था, बट ये मैच द फॉलोइंग है ना, बाकी 3 भी आते थे तो यू कुड हैव सेटल्ड दिस. Coming to the last, ionizing radiation. For ionizing radiation we have always done कि Bacillus pumilus जो होता है that is used for radiation. So remember ionizing radiation के लिए it is going to be Bacillus pumilus. Okay, so ये तो हमारा
हो गई यहाँ के। बट एक बचा गैस स्टेरिलाइजेशन, कौन सी गैस की बात हो रही है मैम? गैस, एंड ये FMG का फेवरेट क्वेश्चन है, गैस स्टेरिलाइजेशन में कौन सी गैस यूज़ की जाती है? इट इज़ एथिलीन ऑक्साइड। दे माइट नॉट राइट पूरा बट दे विल राइट ETO, तो वो सेम चीज़, एथिलीन ऑक्साइड गैस यूज़ की जाती है। एंड व्हाट इज़ द कंट्रोल फॉर दिस? दैट इज़ बैसिलस ग्लोबीजी, गैस स्टेरिलाइजेशन के लिए बैसिलस ग्लोबीजी। बट 2023 में हुआ ट्विस्ट इन द स्टोरी। FMG एग्जाम में एवरीवन वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि हमें तो बहुत अच्छे से आते हैं, कि मैम ने कहा था रेडिएशन के साथ P मतलब प्यूमिलिस ऐड करना, फिल्टर के साथ छोटा वाला बैक्टीरिया ऐड करना, गैस के साथ ग्लोबीजी करना। सो एवरीवन वाज वेरी कॉन्फिडेंट। क्वेश्चन केम एज अ वन लाइनर, व्हाट इज द कंट्रोल फॉर गैस स्टेरिलाइजेशन? एंड स्टूडेंट्स केप्ट सर्चिंग ग्लोबीजी इन द ऑप्शंस, कि कहीं तो ग्लोबीजी होगा, एंड ग्लोबीजी वाज नॉट देयर। तो देन एवरीवन वाज वेरी सैड कि अब क्या मार्क करें। तो ये अब एग्जामिनर की गलती ये है कि ग्लोबीजी इज द न्यू नेम। अब 20 साल पहले ग्लोबीजी वाज सेट टू बी अ पार्ट ऑफ सबटिलिस, तो मैम ये हमारी गलती थोड़ी है कि हमें 20 ईयर पुराना नाम देंगे, तो ऐसे कैसे चलेगा? बट एग्जामिनर है, ही इज़ अलाउड टू डू एवरीथिंग इज़ फेयर ना इन दी एग्जाम, तो एग्जामिनर को कुछ भी अलाउड है। तो हमने अपना तरीका निकालना है, दैट इज़ इफ़ आई नो जो मेरा वाला आंसर है, अगर मुझे वो मिल गया एग्जाम में तो आई मार्क दैट। मेरा वाला आंसर इफ आई डोंट फाइंड इन द एग्जाम, फिर क्या मार्क करके आना है? देन द बेसिक, द OG इज बैसिलस सबटिलिस। अगर कुछ नहीं, मेरा वाला आंसर नहीं मिला एग्जाम में, तो आई विल बी मार्किंग बैसिलस सबटिलिस फॉर एवरीथिंग। कि ग्लोबीजी नहीं मिला तो बैसिलस सबटिलिस लगा दो, ये नहीं मिला तो सबटिलिस लगा दो, ये नहीं मिला तो सबटिलिस लगा दो। मतलब सबटिलिस इज माई लास्ट रिजॉर्ट, कि मुझे अपना वाला आंसर नहीं मिला तो बैसिलस सबटिलिस इज द सेफ आंसर दैट आई विल मार्क इन द एग्जाम। आई होप दिस इज ओके विद everyone. Moving on to the next question. What is the following sterilization or disinfection technique which is using moist heat at 100 degrees? देखो moist heat के थे ना, below 100, at 100, above 100. at 100 इसके अंदर क्या आप देखा? at 100 हमने देखा टिंडलाइजेशन। तो सबसे पहले मॉइस्ट हीट का क्या मतलब होता है? हीट तो हीट है मैम, कैंडल की हीट है, सनलाइट की हीट है, लाइट की हीट है। मॉइस्ट हीट का क्या मतलब है? मॉइस्ट मतलब जिसके अंदर स्टीम या फिर वेपर बन रहा है, जैसे व्हेन दाल, राइस, समथिंग इज कुकड इन योर हाउस, प्रेशर कुकर में कुक होता है, तो प्रेशर कुकर में स्टीम बनता है, वो स्टीम से बेटर कुकिंग होती है, जल्दी कुकिंग होती है, तो स्टीम हमेशा ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इफ़ दे आस्क यू कि सिर्फ हीट बेटर है या मॉइस्ट हीट बेटर है, हमेशा मॉइस्ट हीट बेटर है, बिकॉज उसमें स्टीम बनेगा, वेपर बनेगा, दैट विल ऑलवेज बी बेटर। तो नाउ मॉइस्ट हीट या तो बिलो 100 या एट 100 या अबव 100, एंड वी ऑल नो आर फेमस निमोनिक बिलो 100। बिलो 100 में क्या दो टेक्निक्स आती हैं? दिस इज IPL। IPL मतलब I फॉर इंस्पेसेशन एंड P फॉर पैस्चराइजेशन। जल्दी जल्दी विल यू रिवाइज फॉर मी, सिंस ऑल ऑफ यू आर गिविंग सच गुड आंसर्स, तो 1 मिनट और एक्स्ट्रा स्पेंड करके सभी के टेम्परेचर्स बता दो। बिलो 100 तो है, बट बिलो 100 कितना? बिलो 100 पैस्चराइजेशन करा जाता है ऑब्वियसली फॉर मिल्क, सो दे विल गिव यू सम मदर डेयरी, अमूल या किसी मिल्क डेयरी का हिस्ट्री देंगे, दे विल से वहाँ पैस्चराइजेशन हो रहा है। तो हमारे कंट्री में कौन से मेथड्स होते हैं, कौन सा मेथड अच्छा है, कौन सा करना चाहिए? होल्डर मेथड होता है, फ्लैश मेथड। कुछ भी नहीं याद रहा एग्जाम में तो नाम पढ़ना। होल्डर मेथड में टाइम लंबा होगा, होल्ड करके रखना। फ्लैश जल्दी जल्दी होगा, सेकंड्स फ्लैश में हो जाएगा। तो होल्डर मेथड क्या था? 6330, एंड फ्लैश मेथड क्या है? 7220। 6330 7220। किस में मिनट्स लगाएं, किस में सेकेंड्स लगाएं? ऑब्वियसली होल्डर मेथड में 63 डिग्री होल्ड करना है, तो इट इज गोइंग टू होल्ड द मिल्क फॉर 30 मिनट्स। फ्लैश में जल्दी जल्दी 72 डिग्रीज, फ्लैश मतलब सेकेंड्स में चलेगा काम, 72 डिग्रीज फॉर 20 सेकेंड्स। कौन सा बेटर है? जल्दी मैम जल्दी, टाइम कम है आजकल हमारे पास, वी आर द रील जनरेशन, यूट्यूब शॉर्ट जनरेशन, हम 20-30 सेकेंड्स वाला कंटेंट कंज्यूम करते हैं। तो फ्लैश मेथड भी पैस्चराइजेशन के लिए बेटर है। रीजन बीइंग, ये कौन सा बैक्टीरिया किल कर सकता है विच होल्डर मेथड कैन नॉट? वाई इज फ्लैश बेटर? बिकॉज इट किल्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया कॉल्ड कॉक्सिएला। गोइंग बैक टू पैथोलॉजी, कॉक्सिएला कोई डिजीज कराता था विच इज नोन एज क्यू फीवर।
तो अच्छा, फ्लैश मेथड से क्यू फीवर हट जाएगा मिल्क में से, मुझे क्यू फीवर नहीं होगा देन, दैट इज वाई फ्लैश मेथड इज बेटर। क्यू फीवर का ग्रैन्युलोमा कौन सा था, पैथ क्वेश्चन, क्यू बनाया था उसमें से कौन सा वाला ग्रैन्युलोमा। सो इफ यू रिमेंबर आई जस्ट राइट, नॉट राइट इट, ड्रॉ इट, कि अच्छा हाँ इसमें डोनट ग्रैन्युलोमा था मैम और उसमें से आपने कहा था क्यू बना देना। डोनट ग्रैन्युलोमा वाला जो पैथ का क्वेश्चन था, कॉज्ड बाय क्यू फीवर, मिल्क में से क्यू फीवर हटाना है, हाउ शुड आई किल इट, आई विल किल इट बाय फ्लैश मेथड। तो पैस्चराइजेशन हो गया। अब चलते हैं इंस्पिसेशन। इंस्पिसेशन भी बिलो 100, बिलो 100 कितना, बिलो 100 80 20 80 20 80 20, व्हाट इज ऑल दिस, 80 डिग्री सेंटीग्रेड होगा एंड 20 मिनट्स के लिए, मतलब कितने दिन करोगे मैम, 3 दिन, डे 1 डे 2 डे 3, क्या होगा इंस्पिसेशन का, 3 दिन चलेगा प्रोसीजर, 80 20 80 20 80 20। एंड व्हाट इज इंस्पिसेशन यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर एलजे मीडिया, इट इज यूज्ड फॉर एलएसएस मीडिया। आई एम नॉट राइटिंग दिस क्योंकि ये मुझे 24th को फिर से पढ़ाना ही है, बस अभी मुझे एक एक वर्ड में बता दो। एलजे मीडिया किस बैक्टीरिया के लिए यूज होता है, ये तो इन आर कंट्री इफ यू डोंट नो एलजे मीडिया तो प्रॉब्लम है, ये तो रट लो। इंडिया में टीबी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए फॉर द एग्जाम। एलजे मीडिया इज फॉर टीबी। एलएसएस मीडिया, लॉफलर सीरम स्लोप, ये किसके लिए होता है, दिस इज फॉर डिफ्थीरिया। ये दोनों चीज़ें आपको क्वेश्चंस में मिल जाएंगी ऑन 24th, दैट इज वाई आई एम नॉट राइटिंग इट ओवर हियर। एलजे एंड एलएसएस के लिए क्या यूज करोगे, इंस्पिसेशन। तो बिलो 100 तो हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, एट 100, एट 100 तो मैम बॉइलिंग, पानी को तो बॉयल 100 डिग्री पर ही करते हो, और उसके अलावा टिंडलाइजेशन, यस टिंडलाइजेशन। तो रिमेंबर बॉइलिंग एंड टिंडलाइजेशन बोथ आर डन एट 100 डिग्री। इसे हमने याद करा था कि आईपीएल तो हमने बिलो के लिए कर लिया, और आईपीएल में सबसे इंटरेस्टिंग क्या होता है मैम, बैटिंग होती है सबसे इंटरेस्टिंग। तो एट 100 डिग्री क्या दो चीज़ें आती हैं, एट 100 डिग्री आता है बॉइलिंग, और एट 100 डिग्री आता है टिंडलाइजेशन विच इज पुट अप इन फ्रंट ऑफ अस। फाइनली आता है 100 के ऊपर, अबव 100 डिग्री तो एक ही चीज़, वो तो हमें याद ही है, ऑटोक्लेव। ऐसा दिखता है ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव इज लाइक बेसिकली एक लंबा वाला प्रेशर कुकर। यू विल सी इसके ऊपर वो एक विसल भी है, जैसे प्रेशर कुकर में होती है ना, लिटरली वो सीटी वाली आवाज़ आती है, द वे यू गेट टू हियर इन योर हाउस, सेम आपके किचन में जो आवाज़ है सेम वो लैब में आवाज़ आती है, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग स्टीम ना, तो सेम प्रेशर कुकर फिलोसफी पर ये चलता है। ऑटोक्लेव अबव 100 तो है, पर कितना अबव 100 इज अ क्वेश्चन यू सीन अ मिलियन टाइम्स। 121 डिग्री 15 मतलब 15 मिनट, एंड कितना प्रेशर, प्रेशर का भी यूनिट पूछते हैं 15 psi। तो रिमेंबर 121 डिग्री 15 दैट इज ऑटोक्लेव। रिपीटिंग, बिलो 100 क्या था, इंस्पिसेशन और पैस्चराइजेशन, एट 100 क्या है, बॉइलिंग और टिंडलाइजेशन, अबव 100 क्या है, ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव कैसा दिखता है, फोटो हमने देख लिया। ऑटोक्लेव का कंट्रोल क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे है तो मैम आपने कहा था थर्मो वाला कंट्रोल, वो भी हमने कर लिया, पूरा ऑटोक्लेव की कहानी खत्म। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, व्हाट इज द आइडियल एजेंट ऑफ चॉइस फॉर स्टेरिलाइजिंग द शोन इंस्ट्रूमेंट। ऐसा कोई भी स्कोप आएगा, लैरिंगोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप, एंडोस्कोप, सिस्टोस्कोप, दुनिया का कोई भी स्कोप आएगा, एंड माय आंसर विल बी ऑल स्कोप्स आर गोइंग टू बी क्लीन्ड बाय साइडेक्स। साइडेक्स बॉटल मार्केट में आती है, वो एक्चुअली क्या होती है, साइडेक्स बॉटल इज 2% ग्लूटरएल्डिहाइड, मतलब कोई भी स्कोप का फोटो आया, आई विल बी यूजिंग साइडेक्स और ग्लूटरएल्डिहाइड, एक्सेप्ट, कैन यू टेल मी two exceptions which are very very important, except arthroscope, मतलब if they say कोई joint का joint से related history है, there is an orthopedic surgeon, he is visualizing the joints, he is using arthroscope, या फिर कोई किडनी से रिलेटेड है, कोई यूरेट्रोस्कोप, तो ये दो एक्सेप्शंस याद रखना, आर्थ्रोस्कोप एंड यूरेट्रोस्कोप, दे आर बाय प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन। बट इन दिस कॉन्सेप्ट हम यूजुअली क्या करते हैं कि स्कोप मैम ने कहा था स्कोप साइडेक्स, स्कोप साइडेक्स, स्कोप साइडेक्स, बट आर्थ्रोस्कोप और यूरेट्रोस्कोप नहीं। अब उस ड्यूरेशन में जब वो स्टेथोस्कोप लिख देते हैं तो हम वो स्टेथोस्कोप भी मान लेते हैं कि इसी में आएगा, नहीं, स्टेथोस्कोप तो हमारा ऑर्नामेंट, यू कैन से इट इज़ आर डिग्री, हम पहनते हैं ना स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप बॉडी के अंदर थोड़ी जाती है, स्टेथोस्कोप तो सिर्फ स्किन पर रखा जाता है। सो टू क्लीन द स्टेथोस्कोप व्हाट आर यू गोइंग टू यूज़, ये वाले ऑप्शंस होते बता दो। इन्हीं ऑप्शंस में से स्टेथोस्कोप के लिए क्या यूज़ करते हैं, वेरी गुड, यू क्लीन इट विद अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। स्टेथोस्कोप, ऐसा नहीं एग्जाम में ऐसा ब्लाइंडेड नहीं होके जाना कि स्कोप साइडेक्स करा तो स्टेथोस्कोप को भी हम मैम साइडेक्स करके आ गए, ये वाली गलती नहीं करनी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिस इज द लास्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन विच टेल्स अस कि आपको डिसइंफेक्टेंट के बारे में बताना है. यू कैन सी रेट्रोग्रेड रेट्रोस्पेक्टिव कैसे हेल्प करता है. मैंने जल्दी से ऑप्शंस पढ़े एंड आई वाज डेड श्योर कि ये माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन आया, ये और किसी चैप्टर किसी सब्जेक्ट में है ही नहीं. तो मुझे क्या देखा इसमें, विच टेस्ट इज गोइंग टू गिव यू अ रियल टाइम असेसमेंट ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ अ डिसइंफेक्टेंट इन यूज. आई विल गिव यू, मतलब इस इंग्लिश को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, विच मीन्स दैट यू आर, लेट्स से you have your own personal clinic, private hospital, you have cleared all these exams, finally you have done your specialization and आप finally अपने clinic में बैठे हो. अपने clinic में आपने decide करा I will use a solution of X to clean the floor, to clean the tables, to clean my OT table. आपने एक solution X रखा है. Suddenly after few days you realize that solution X is not working. You can see that there are some bacterial growth happening. मतलब का जो disinfectant है वो कंटैमिनेट हो चुका है. मे बी दैट हैज़ ओनली गॉटन कंटैमिनेटेड. तो हाउ विल यू टेस्ट फॉर दैट? यू विल टेस्ट इट यूजिड केल्से मॉरर टेस्ट. तो 4 टेस्ट हैं, एक एक करके हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग. सबसे पहला, एंड इफ़ यू नो देयर अदर नेम ना, देन यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग. लेट्स, एज यू सेड, लेट्स अज्यूम आपने FMG एग्जाम क्लियर करा, उसके बाद यू गेव योर स्पेशलाइजेशन, सब हो गया. 5 years डाउन द लाइन यू सडनली रियलाइज कि अब मुझे क्लिनिक ओपन करना है. क्लिनिक ओपन करोगे उस दिन यू विल रिमेंबर दिस चैप्टर एंड दैट डे you will obviously, this textbook and notes will be somewhere in the raddi. You will never ever store them for the next 5 years. But then suddenly you realize and you ask me कि मैम, you call me that day कि मैम अब मुझे ना एक X solution है, I am going to use that in my lab. Can you tell me in my clinic, in my lab, in my hospital कि ये X solution ठीक से काम करेगा या नहीं करेगा? Can I use it in my hospital? I will do 4 tests for you and tell you. सबसे पहला test is going to be the Riedel-Walker test. What is Riedel-Walker test? It is the phenol coefficient test. Phenol coefficient मतलब I will do a very basic thing. आपका जो solution X है, I will compare it with what? I will do a testing कि अच्छा phenol जैसा है तो बढ़िया है, phenol जैसा नहीं है तो बढ़िया नहीं है. But do you think that's the right thing? You come to me saying that मैम FMG एग्जाम के लिए I am getting 150 marks in my GT. So what should I do? Should I start comparing you with someone who has been studying since 5-6 years and is getting 200 plus? Will that be the right approach? या फिर मैं आपके 150 पे फोकस करके कोशिश करूँ कि 150 का 170 कैसे करा जाए? That will be the right approach. मैम आप किसी और से कंपेयर करोगे, that will never be the best approach. तो Riedel-Walker test पे तो you are comparing with phenol. That is why this is not the best approach. They said नहीं, इसमें better करो. Do something called modified Riedel-Walker test, जिसका modified modern वाला नाम दिया, called Chick-Martin test. What are you doing? You are going to use it with certain एक्चुअल प्रैक्टिस. तो अगर आपके 150 मार्क्स आ रहे हैं, आई विल से कि नहीं, अपना मुझे GT एनालिसिस बताओ, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कहाँ पर गलती करी, हाउ मेनी सिली मिस्टेक्स, कितने सब्जेक्ट्स पूरे करे थे. आई विल डू पर्सन टू पर्सन एनालिसिस. एवरी पर्सन विल हैव अ डिफरेंट प्रॉब्लम. तो यहाँ पे भी हमने यही करा. आई यूज्ड इट विद सॉइल, आई यूज्ड इट विद फीकल मैटर, कि अलग अलग चीज़ों को कैसे डिसइंफेक्ट कर सकता है ये. डज इट वर्क ऑन सॉइल? डज योर सोल्यूशन एक्स वर्क ऑन फीसेस? डज योर सोल्यूशन एक्स वर्क ऑन फंगस? अलग अलग केस ऑन केस करा, तो दैट इज मॉडिफाइड रीडल-वॉकर टेस्ट. फिर हमने करा व्हाट इज कैपेसिटी टेस्ट. व्हाट विल आई डू? आई विल टेल यू कि हर तीसरे दिन एक GT दो. आई एम ट्राइंग टू टेस्ट योर कैपेसिटी, दैट एवरी 3 days कैन यू डू 300 क्वेश्चंस. आई एम ट्राइंग टू टेस्ट योर कैपेसिटी. सो इफ आई एम ट्राइंग टू टेस्ट द कैपेसिटी ऑफ अ डिसइंफेक्टेंट कि ये कितनी बार काम करेगा, आई विल डू केल्से साइक्स टेस्ट. प्लीज याद रखना, एक है केल्से साइक्स, एक है केल्से मॉरर. तो केल्से साइक्स जो है वो कैपेसिटी टेस्ट करता है, और केल्से मॉरर जो है दैट इज गोइंग टू टेस्ट द यूजेज कि अच्छा सच में ये काम कर रहा है, या सच में मतलब फाइनली मैम आपने तो अपनी टेस्टिंग कर दी, आई एम नाउ यूजिंग इट इन माई हॉस्पिटल, सच में काम कर रहा है, इज इट वर्किंग, इज इट नॉट वर्किंग, इज इट कंटेमिनेटेड, इज इट क्लीन. दैट यूजेज वाला टेस्ट विल बी टोल्ड बाय केल्से मॉरर. सो नाउ रीड 4 questions. You are doing a test to find out whether it is comparable to phenol or not. Which test is it? Riedel-Walker. Whether your solution X is going to work in the presence of soil, fungus, feces, you are doing modified Riedel-Walker, that is Chick-Martin test. You are trying to test the capacity of a disinfectant, Kelsey-Sykes test. You are trying to test the real-time usage of a disinfectant, that is Kelsey-Maurer test, and the answer over here. तो 4 ही क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, and there is no 5th question possible. Moving on to everyone's favorite question.
question, and obviously general is done and we go on to mycology now. Identify the dermatophyte based on the macroconidia shown in the image. एक question तो इस पे आएगा ही आएगा, touch wood, fingers crossed, हमेशा आया है. And what is the answer? Epidermophyton. तो जब हमने बात करी मैम ये TME हमेशा याद रहता है. Whenever they say dermatophyte तो हमें टेलीग्राम याद करना है. आपका फेवरेट प्लेटफॉर्म जहाँ पे पढ़ाई के अलावा सिर्फ स्पैम होता है पूरा दिन, है ना. तो दिस मीन्स TME, टेलीग्राम याद रखना. 3 चीज़ें आती हैं, ट्राइकोफाइटन, माइक्रोस्पोरम एंड एपिडर्मोफाइटन. एंड सबसे ज़्यादा आई फील, ऑल्दो आई एम अ पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ टेलीग्राम ग्रुप्स, बट पूरा दिन अगर सबसे ज़्यादा नॉन अकेडमिक बातें किसी टेलीग्राम ग्रुप पे होती हैं, दैट इज़ अनफॉर्चुनेटली माई टेलीग्राम ग्रुप. सो आई हैव नेम्ड इट एज पर माई टेलीग्राम ग्रुप, प्रीति शर्मा चैनल. तो रिमेंबर TME, टेलीग्राम का TME, एंड PSC फॉर माई टेलीग्राम चैनल. वाई डिड आई राइट दिस? बिकॉज दे हैव सेड मैक्रोकोनिडिया, ये जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स है ना, इनका शेप देखना है. मैक्रोकोनिडिया का शेप, तो सबसे पहले ट्राइकोफाइटन में कौन सा शेप होता है मैम? दे आर लुकिंग लाइक अ पेंसिल. सो आई विल राइट ओवर हियर, दे आर लुकिंग लाइक अ पेंसिल शेप मैक्रोकोनिडिया. फिर माइक्रोस्पोरम में कौन सा शेप होता है? ये दिख ही रहा है, दिस इज लुकिंग समवॉट लाइक अ स्पिंडल. सो वी हैव स्पिंडल शेप मैक्रोकोनिडिया. एंड फाइनली कमिंग टू द लास्ट वन जो यहाँ पूछा गया था, देखो ये फोटो सेम. तो यहाँ पे पूछा गया था एपिडर्मोफाइटन. एपिडर्मोफाइटन का PSC ऐसा क्लब शेप दिखाई देता है, एज यू कैन सी ओवर हियर. सो अब यही 3 फोटोज हैं एग्जाम में, यही 3 आ सकती हैं, कोई 4th फोटो बनती ही नहीं है. तो अगर ऐसा दिखा विच इज गोइंग टू बी पेंसिल शेप्ड तो ट्राइकोफाइटन, अगर ऐसा दिखा विच इज स्पिंडल शेप्ड तो माइक्रोस्पोरम, और ऐसा दिखा विच इज क्लब्ड शेप्ड सो दैट इज गोइंग टू बी एपिडर्मोफाइटन. दैट इज द आंसर ओवर हियर. अब ये तो था बड़े वाले कोनिडिया, मैक्रोकोनिडिया के बेसिस पे. अगर क्वेश्चन में चेंज होता, दे सेड ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोकोनिडिया कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना. सबसे ज़्यादा ये देखो माइक्रोकोनिडिया मतलब छोटू वाले डॉट्स, छोटे छोटे कितने सारे घूम रहे हैं मैम. ट्राइकोफाइटन में तो सबसे ज़्यादा माइक्रोकोनिडिया. अगले में चलते हैं. माइक्रोस्पोरम में है कुछ छोटे छोटे डॉट्स हैं, बहुत नहीं है, बट देर आर सम छोटे छोटे डॉट्स दैट आई कैन सी. तो आई विल से हाँ कुछ तो माइक्रोस्पोरम में भी है. एपिडर्मोफाइटन में पूरा साफ, बैकग्राउंड इज टोटली वाइट. डू यू सी एनी माइक्रोकोनिडिया? नहीं, हार्डली, जीरो. तो आई डोंट सी. कैन आई से डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला गया. माइक्रोकोनिडिया में TME में क्या करोगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दोगे. तो एग्जाम में मैक्रोकोनिडिया पूछा तो PSC, और माइक्रोकोनिडिया पूछा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया. ओके, मूविंग ऑन टू, एज आई सेड इस पे क्वेश्चन आएगा. ये नहीं आएगा तो दे विल गिव द नेक्स्ट फेवरेट क्वेश्चन, दैट इज 28-year-old पर्सन कम्स विद हेयर लॉस एंड स्कैल्प लीजन्स. तो डर्मा वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया. बट अगर मैंने रेट्रोस्पेक्टिव पढ़ा होता कि यहाँ पे ये सब लिखा है, इंक्यूबेशन, माइक्रोस्कोप, टी मेंटाग्रोफाइट, तो ये डर्मा का नहीं, ये माइक्रो का क्वेश्चन आई वुड हैव अंडरस्टूड. Now they are saying a hair perforation test is performed whenever, rule number 1, whenever they say hair perforation test, तो common sense इसमें hair use होगा. they will take a hair and then they will try to see कि hair में perforation हुआ या नहीं, कौन से fungus ने कराया. they are trying to differentiate between T rubrum and T mentagrophyte. उन्हें बस जानना है which fungus can perforate the hair, which fungus will not perforate the hair. so this is how the hair perforation test looks like. देखो ये एक hair है, does it seem perforated? नहीं मैम, ये hair as it is intact है, मतलब ये वाले फंगस ने हेयर परफोरेशन नहीं करा. नेगेटिव हेयर परफोरेशन टेस्ट. सेकंड वाला फोटो इफ आई सी, इन दिस आई कैन सी कि हाँ हेयर में ऐसे थोड़े थोड़े अंदर जैसे ना कोई डिग कर रहा है, परफोरेट कर रहा है, समवन इज ट्राइंग टू टेयर द हेयर. सो दिस मीन्स हेयर परफोरेशन टेस्ट इज पॉजिटिव. सो प्लीज कीप इन माइंड कि एक ही फंगस है जो हेयर परफोरेशन टेस्ट पॉजिटिव देता है, दैट इज T mentagrophyte. T mentagrophyte में हमने कैसे याद किया था, और दूसरा कौन सा लिखा है एग्जामिनर ने? T mentagrophyte तो लिखा है, एक और लिखा है T rubrum, बाकी कुछ भी लिखे, that will not give hair perforation test positive. only one will give hair perforation test positive and that is T mentagrophyte. बिल्कुल फाइट जैसे फाइट करना मतलब बिल्कुल हेयर को ऐसे फाइट करके हेयर फाड़ देना, that is what it has done. T mentagrophyte ने फाइट करा, हेयर को बिल्कुल परफोरेट करके फाड़ दिया. so now let me read. if I see T mentagrophyte
agraphite is going to show surface erosion of the hair shaft. यही तो perforation हुआ ना कि जो hair है उसका जो surface है वो erode हो जाएगा. So that is going to be T mentagraphite. And they asked you which of the following statements is correct. ये तो correct है. बाकी देखते हैं. Microscopically hair is examined using कुछ लिखा है Graucoats, methenamine, silver stain. मैम आपने कहा था जब भी सिल्वर कलर आएगा या सिल्वर यूज होगा तो ब्लैक होगा. यहाँ पे तो मुझे ब्लूइश दिखाई दे रहा है, तो ये तो वैसे ही कोई यूजलेस ही स्टेटमेंट दे हैव रिटन. टी रूब्रम शोज वेज शेप्ड हेयर. नहीं, मेंटाग्रोफाइट के अलावा नो वन इज गोइंग टू शो. अब इंक्यूबेशन अकर्स एट 37 डिग्रीज. ये क्या मुझे याद करना था? मुझे नहीं करना था, बिकॉज इंक्यूबेशन अकर्स इन 20 डिग्री. बट आपको नहीं याद करना. क्यों? बिकॉज दे आस्क्ड यू फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड आपको करेक्ट स्टेटमेंट मिल गया. सो समटाइम्स इन द एग्जाम ऑल्सो दिस हैपन्स. 4 ऑप्शन में से आपको 4 का पढ़ा हुआ हो, दैट विल नेवर हैपन. इट विल ऑलवेज, क्योंकि हाँ 1-2 तो मैंने पढ़े हुए थे, एक का तो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कि इंक्यूबेशन कौन से टेम्परेचर पर होता है. बट एग्जामिनर asked me for a correct statement and मुझे मेरा correct statement and answer मिल गया. So then I ignore the statement that I wasn't aware of. कभी भी एग्जाम में मत सोचना कि मुझे 4 out of 4 ऑप्शंस मेरे पढ़े हुए नोट्स में से एज इट इज आ जाएंगे. कुछ बहुत रैंडम लिखा होगा, कुछ बहुत वेग लिखा होगा. उसमें डोंट गेट स्टक कि ओ शिट ये मुझे नहीं आता एंड दिस इज वेयर आई विल लूज अ मार्क. नो, यू जस्ट मूव फॉरवर्ड. आप वो ढूंढो जो आपको आता है एंड यू मार्क दैट एज द आंसर. Moving on to the next question. Here you have a 35-year-old woman who presents with a chronic ulcer on her leg that has been slowly expanding over several months, with a history of gardening and often works with soil. Physician suspects a subcutaneous mycosis. Mycosis मतलब fungal infection, subcutaneous है. Which of the following conditions, देखो यहाँ पर गलती होती, is not classified in the same group and all of you are saying tinea versicolor. पहले तो मैम हिस्ट्री वाइज भी देखे ना, तो tinea versicolor जो होता है, and this क्वेश्चन केम इन द रीसेंट INICT. थोड़ा यही ऑप्शंस थे बट क्वेश्चन का लैंग्वेज आई टेल यू क्या था. टीनिया वर्सिकलर तो वैसे भी जब भी आएगा तो इसके लिए तो दे विल हैव टू टेल मी दैट फ्राइड एग अपीयरेंस वाली कॉलोनीज, क्योंकि इसके अंदर व्हाट डू दे से देयर इज कौन सा टीनिया वर्सिकलर के फंगस का क्या नाम है? इट इज गोइंग टू बी मैलासीजिया फरफर और फुरफुर, वट एवर यू गाइज लाइक टू से. तो दैट इज टोटली डिफरेंट. वो तो टीनिया मतलब स्किन पे होता है. टीनिया डज नॉट हैपन इन द सबक्यूटेनियस रीजन. टीनिया का तो मतलब ही है स्किन का, सुपरफिशियल स्किन का इन्फेक्शन है. तो इट इज गोइंग टू अकर ऑन द स्किन, इट इज गोइंग टू अकर ऑन द स्कैल्प सुपरफिशियली. सबक्यूटेनियस नहीं होता. सबक्यूटेनियस हाँ, नॉट वेरी गुड. तो नाउ टेल मी सबक्यूटेनियस कौन कौन से होते हैं मैम जो बाकी सारे लिखे थे. अगर आपको ये नहीं भी पता था ना, लेट्स अज्यूम यू डिडंट नो दिस, यू स्टार्ट रीडिंग. देयर इज समथिंग अबाउट अल्सर ऑन द लेग, पेशेंट हैज़ बीन वॉकिंग एंड गार्डनिंग है, सॉइल के कॉन्टैक्ट में है. तो मतलब मैम कुछ बेयर फुट वॉकिंग वाला गार्डनर है ये. अब दे आस्क यू कि बेयर फुट वॉकिंग से क्या क्या होता है, एंड नाउ आई विल टेल यू ऑल दीज थिंग्स. प्लीज नोट, सबक्यूटेनियस में 4 फंगस होते हैं, दैट इज MRCS. सबसे पहले आता है माइसेटोमा. माइसेटोमा को ऑल ऑफ यू नो एज मधुरा फुट. इफ आई am correct, all of you are aware. मधुरा फुट पे एक MCQ भी था आज. आई एम कमिंग टू दैट MCQ ओनली नेक्स्ट. तो मधुरा फुट वाला ऑब्वियसली ऐसे बेयर फुट वॉकिंग की वजह से हो सकता है. मधुरा फुट ऑब्वियसली सबक्यूटेनियस होता है. अगला राइनोस्पोरिडियोसिस. राइनोस्पोरिडियोसिस ऑब्वियसली बेयर फुट की वजह से नहीं होता, बट राइनोस्पोरिडियोसिस इज सबक्यूटेनियस. कुछ ENT का क्वेश्चन याद आ रहा है? राइनोस्पोरिडियोसिस, राइनो मतलब नोज. क्या देखने को मिलता है नोज में? आई गॉट यू अ छोटा सा फोटो विच माइट give you visual memory from rapid revision. Rhinosporidiosis, yes मैम, नोज में से स्ट्रॉबेरी निकलता हुआ दिखता है, दैट इज राइनोस्पोरिडियोसिस. तो सबसे पहले अ वेरी क्विक रिविजन. राइनो मतलब नोज, एंड नोज में से आई एम मेकिंग अ छोटा सा स्ट्रॉबेरी ओवर हियर, ताकि रिविजन में याद रहे कि नोज में से ऐसे स्ट्रॉबेरी वाले पॉलिप्स बनते दिखेंगे. वेरी गुड. राइनोस्पोरिडियोसिस, स्पोरिडिया मतलब अब जो अगला फोटो हमने देखा, माइक्रोस्कोपिकली क्या दिखता है मैम? ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, विच एवरीवन इज राइट कि हाँ वी आर सेइंग. समवन रोड के स्ट्रॉबेरी पॉलिप सबने लिखा, कुछ लोगों ने लिखा एंडोस्पोर्स. यस, राइनो मतलब नोज, स्पोरिडियोसिस मतलब ऐसे राउंड स्ट्रक्चर्स के अंदर ऐसे स्पोर्स होंगे, छोटे छोटे डॉट 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 जो आपको दिख रहा है. तो यू आर गोइंग टू सी एंडोस्पोर्स विच आर प्रेजेंट अंडर द माइक्रोस्कोप. सो नाउ सी राइनोस्पोरिडियोसिस. राइनो मतलब नोज का स्ट्रॉबेरी, एंड स्पोरिडियोसिस मतलब हमें स्पोर्स दिखेंगे. कमिंग टू नेक्स्ट, माइसेटोमा सबक्यूटेनियस, राइनोस्पोरिडियोसिस सबक्यूटेनियस.
क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस भी यहाँ पे दिया हुआ था। क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस में कौन सी बॉडीज दिखती हैं? कम ऑन, यू हैव टू नो दिस। इसके बिना तो आई डेंट इवन गिव अ क्वेश्चन, क्योंकि ये सबको इतना इजीली पता है। कॉपर पेनी बॉडीज। क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस में मैम हमें वो क्लासिकल, यू विल सी द कॉपर पेनी बॉडीज विच नो वन कैन मिस। क्या ये बेयर फुट वॉकिंग से होता है? यस, this happens because of barefoot walking. You can see what kind of a lesion is formed. Some people call this the cauliflower like lesion that is formed on the foot. तो ये भी हो सकता था, राइट? कॉलीफ्लावर लाइक लीजन ऑन द फुट। कॉपर पेनी बॉडीज तो मैं सब करना ही नहीं। तो हमारा माइसेटोमा हो गया, राइनो हो गया, क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस हो गया एंड स्पोरोथ्रिक्स हो गया। दिस वुड बी स्पोरोथ्रिक्स, क्योंकि स्पोरोथ्रिक्स का दूसरा नाम क्या है? इस पर अभी क्वेश्चन आने वाला है। स्पोरोथ्रिक्स का दूसरा नाम है रोज गार्डनर्स डिजीज एंड दिस इज अ पर्सन हु इज गार्डनिंग। तो हो सकता है ये जो क्वेश्चन था दिस वॉज एक्चुअली टू डू विद स्पोरोट्रिकोसिस, बट यहाँ पूछा गया विच इज नॉट अ सबक्यूटेनियस। तो माइसेटोमा इज सबक्यूटेनियस, क्रोमो इज सबक्यूटेनियस, स्पोरोथ्रिक्स इज सबक्यूटेनियस, विच इज नॉट सबक्यूटेनियस। आंसर बिकम्स टीनिया वर्सिकलर। हमने इसे बहुत डिटेल में पढ़ा, एग्जाम में तो आपको इसे 2 सेकंड में सॉल्व करना है। विच इज नॉट सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस मैम MRCS होते हैं, जो नहीं होता सबक्यूटेनियस दैट इज टीनिया वर्सिकलर। बट हमने आसपास का पूरा टॉपिक खत्म किया। ओवर हियर नाउ वी स्टडीड समथिंग कॉल्ड माइसेटोमा। एक मैंने GT में माइसेटोमा पे भी क्वेश्चन दिया, बिकॉज दिस ऑल्सो केम इन द रिसेंट INI-CT। तो सेम आपका रिविजन भी हो रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो रहे हैं। हियर यू हैड अ 45-year-old मैन प्रेजेंटिंग विद अ पेनलेस नोड्यूल ऑन द फुट, प्रोग्रेसिवली एनलार्ज्ड एंड अपॉन एग्जामिनेशन ड्रेनिंग साइनसेस। फुट में जब भी ड्रेनिंग साइनसेस की स्टोरी आएगी यू विल ऑलवेज बी, ऐसा या तो फोटो दिया होगा, फुट होगा उसमें से ऐसे पस निकलता हुआ ड्रेनिंग साइनसेस, हमेशा यू विल थिंक ऑफ माइसेटोमा या मदुरा फुट। ये तो सोचना ही सोचना है, वेन एवर फुट विद ड्रेनिंग साइनस। अब उस साइनस में से जो ड्रेन हो रहा है वो क्या है? दे आर सेइंग देर आर ब्लैक कलर ग्रेन्स। वेन एवर दे से ब्लैक कलर ग्रेन्स आर कमिंग आउट यू विल ऑलवेज बी थिंकिंग ऑफ अ फंगस। सो नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। वेन एवर मदुरा फुट हैपन्स, ये फोटो मदुरा फुट का होगा, 2 रीजन होते हैं। ईदर इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया or it is caused by a fungus. Either it is caused by a bacteria or it is caused by a fungus. बैक्टीरिया कौन सा होता है? एक्टिनोमाइसेटोमा। फंगस वाले को क्या बोलते हैं? यूमाइसेटोमा। सी इट्स द सेम थिंग, है तो सेम। क्लिनिकली तो मुझे पेशेंट को देख के लग रहा है दिस इज मदुरा फुट, बट माइक्रोबायोलॉजिकली दिस कैन बी बिकॉज ऑफ 2 रीजन। इधर इट कैन बी बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, तो ऐसे याद कर सकते हो। एक्टिनोमाइसेटोमा क्या होगा? AB। एक्टिनोमाइसेटोमा बैक्टीरिया वाले को बोलते हैं। यूमाइसेटोमा किसको बोलते हैं? EF। यूमाइसेटोमा फंगस वाले को बोलते हैं। तो अब मुझे कैसे पता लगेगा? एज सुन एज दे से ब्लैक कलर ग्रेन्स आर कमिंग आउट आई एम वेरी सर्टन दैट दे आर टू डीलिंग विद फंगस। मतलब ये यूमाइसेटोमा का केस था। अब मुझे इन ऑप्शंस में से फंगस ढूंढना है। एक्टिनोमाइसेटोमा क्या होता है मैम? वो तो बैक्टीरिया होता है, तो रूल्ड आउट। नोकार्डिया क्या है? नोकार्डिया भी एक बैक्टीरिया है, तो दैट इज रूल्ड आउट। टी रूब्रम, ये तो कहीं भी नहीं कराता। रूब्रम ये तो टीनिया हो गया, टीनिया तो वो सारा स्कैल्प वाली चीज़ें कराता है, रूल्ड आउट। कौन सा फंगस है विच आई कैन फिट ओवर हियर एज माई आंसर विद ब्लैक ग्रैन्यूल्स? दैट इज मदुरेला माइसेटोमेटस। ध्यान से देखो, माइसेटोमेटस ये करा रहा है, यू माइसेटोमा करा रहा है। सो वेन यू सॉ ब्लैक ग्रेन्स यू स्टार्टेड थिंकिंग, और चलो ब्लैक ग्रेन्स आपको नहीं याद आया मैम, मुझे तो याद ही नहीं था कि ब्लैक ग्रेन्स फंगस की वजह से होते हैं। देन आई स्टार्टेड रीडिंग फर्दर। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन शोज थिक वॉल्ड ग्रेन्स एंड हाइफे। हाइफे वर्ड तो फंगस के लिए यूज होता है, दिस तो यू आर अवेयर ऑफ। हाइफे, स्यूडो हाइफे, ये सारे वर्ड्स तो फंगस के हैं। दैट ऑल्सो शुड हैव गिवन यू अ हिंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट यूमाइसेटोमा एंड आंसर इज मदुरेला माइसेटोमेटस। यस, आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पढ़ने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बट एक बजवर्ड में आंसर आपके सामने था। If you got that buzzword, it was very easy. 45-year-old male patient, HIV positive, फीवर है, वेट लॉस है, कफ है। सो अभी तक इट्स लुकिंग लाइक एन HIV का केस। कफ है तो हो सकता है HIV में TB हो गया हो, आई डोंट नो। नाउ देर इज अ साउथ ईस्ट एशिया का हिस्ट्री and frequently encounters bamboo rats. If you caught this word, life would have been easier. बैम्बू रैट का TB से मुझे कोई कनेक्शन नहीं समझ में आ रहा, तो नाउ आई स्टॉप थिंकिंग अबाउट TB। लेट मी रीड फर्दर। लिम्फेडिनोपैथी है, लिवर भी एनलार्ज्ड है, फिर एक इमेज दिया है। इमेज में क्या दिख रहा था सबको? इट वॉज लुकिंग लाइक समथिंग लाइक अ झाड़ू, लाइक अ ब्रूम। सो यू कुड सी दैट देयर वाज सम ब्रूम स्टिक, ब्रश और ब्रूम अपीयरेंस। कुछ याद आ रही है एक स्टोरी? झाड़ू से रैट को मारना है एंड दैट इज विच फंगस?
पेनिसिलियम मार्नेफी ऐसे याद किया था कि सबसे पहले यू आर गोइंग टू गेट अ ब्रूम अपीयरेंस दैट यू सी अंडर द माइक्रोस्कोप। तो ब्रूम मतलब झाड़ू, किसको मारना है? बैम्बू रैट को मारना है, तो पेनिसिलियम मार्नेफी। एंड देन यू सेड रैट को झाड़ू से मारना तो है मैम, बट मार मार के लाल करना है। लाल करना है मतलब दैट विच कॉलोनी कल्चर color will you see? You will be seeing what color pigment? You will be seeing a classical मार मार के लाल करना है, रेड कलर पिगमेंट। सो लिसन टू द स्टोरी अगेन। फंगस का क्या नाम है? पेनिसिलियम मार्नेफी। अगर कोई पूछे कि ये फंगस कहाँ मिलता है, व्हाट इज द रेजर्वॉयर ऑफ दिस फंगस? द रेजर्वॉयर इज बैम्बू रैट। माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिनेशन पे क्या दिखता है? ब्रूम अपीयरेंस। एंड कल्चर में कौन सा पिगमेंट दिखता है? इट इज द रेड पिगमेंट। बट बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, इसका तो खत्म, रैट को झाड़ू से मार मार के लाल करना याद आ गया तो क्वेश्चन याद आ गया। बट फंगस में कौन सा कल्चर यूज होता है? ब्लड आगार, चॉकलेट आगार, न्यूट्रिएंट आगार, एलजे मीडिया, एसडीए आगार। कौन सा आगार? कोई भी फंगस हो, हमेशा कौन सा आगार यूज होगा? एसडीए, दैट इज फॉर फंगस। फंगस में कोई ब्लड आगार, चॉकलेट आगार नहीं चलता। इट इज गोइंग टू बी SDA। yes, I'm moving on to the next question। बहुत सारे फंगस अब क्लिनिकली आने वाले हैं आपके पास। 45-year-old मेल पेशेंट विद कफ, नेजल डिस्कम्फर्ट एंड वेट लॉस। देन साउथ अमेरिका। माइक्रोबायोलॉजी में अमेरिका अफ्रीका इंपॉर्टेंट होता है, फंगस में तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज देर इज अ डिजीज, वन डिजीज इन फंगस दैट हैपन्स इन साउथ अमेरिका। On examination, ulcerative granulomas on the nasal and buccal mucosa, and microscopic examination was given. If you remember, this was looking like the classical pilot wheel appearance। जैसे पायलट का व्हील होता है या वो शिप का व्हील होता है तो उसे मैरिनर व्हील बोलते हैं। यस, दैट इज नोन एज द पायलट व्हील अपीयरेंस बोल लो या मैरिनर व्हील अपीयरेंस बोल लो। यस, मेनी ऑफ यू से कि मैम अगर बहुत सारे नहीं होंगे, सिर्फ 2 होंगे, तो दैट विल ऑल्सो बी नोन एज द मिक्की माउस अपीयरेंस। इन फैक्ट देर इज द वेरी नाइस मिक्की माउस विच is seen over here। you can see कि हाँ एक फोटो है एंड उसके ऐसे 2 ईयर्स बने हुए हैं। सो दिस इज द क्लासिकल मिक्की माउस अपीयरेंस दैट यू नोटिस। तो मिक्की माउस बोलो, पायलट व्हील बोलो, मैरिनर बोलो, जब ये फोटो आया, इट हैज टू बी पैराकॉक्सीडियोआइडोमाइकोसिस। पैराकॉक्सीडियोआइडोमाइकोसिस का दूसरा नाम साउथ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस। सो ओवर हियर देयर वर 2 बज़वर्ड्स, एक साउथ अमेरिका था, वो नहीं भी हिट हुआ, तो ये पायलट, मैरिनर या मिक्की माउस से हिट हुआ, तो पैराकॉक्सीडियोआइडोमाइकोसिस इज द आंसर। अभी वो कौन सा, ये क्या हमने कौन से फंगस शुरू करे? पेनिसिलियम मार्नेफी भी उसी टॉपिक में आता है, पैराकॉक्सीडियोआइडोमाइकोसिस भी उसी टॉपिक में आता है। मे बी जो अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो भी उसी टॉपिक में आएगा। डायमॉर्फिक फंगस की बात हो रही है। आई विल शो यू द टेबल ऑफ डायमॉर्फिक फंगस इन 5 मिनट्स। पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बायोप्सी फ्रॉम अ क्यूटेनियस लीजन सस्पेक्टेड स्पोरोट्रिकोसिस। स्पोरोट्रिक्स भी डायमॉर्फिक फंगस है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड स्ट्रांगली सपोर्ट, के माइक्रोस्कोप में ऐसा क्या दिखा? स्पोरोट्रिकोसिस में ऐसा क्या दिखता है जिसे हम मैम रोज गार्डनर्स डिजीज बोल रहे हो कि रोज गार्डनर को थॉर्न प्रिक होता है? वेरी गुड, वी गेट टू सी नंबर 1 सेंटर में एक राउंड सा लीजन दिखता है जिसे बोलते हैं सिगार बॉडीज, एंड उसके आसपास यू सी अ स्टार फॉर्मिंग, सो दैट इज एस्टेरॉइड बॉडीज। व्हाट आर द 2 बॉडीज? अभी हमने 3 बॉडीज आज पढ़ ली। एक तो वो कॉपर पेनी बॉडीज पढ़ी, कॉपर पेनी बॉडीज वाज फॉर क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस, सेटल्ड। दूसरा क्या है? सिगार बॉडीज आर फॉर स्पोरोथ्रिक्स एंड इवन एस्टेरॉइड बॉडीज आर फॉर स्पोरोथ्रिक्स। तो माइक्रोस्कोपिकली क्या दिखा होगा? सिगार बॉडीज। बाकी सब पढ़े क्या क्या है? व्हाट इज दिस? थिक वॉल्ड स्फेर्यूल्स फिल्ड विद एंडोस्पोर्स। ये कौन सी बीमारी लग रही है? अभी अभी हमने पढ़ी थी वो स्ट्रॉबेरी पॉलिप वाली, एंडोस्पोर्स वाली, राइनोस्पोरिडियोसिस लग रहा है मैम ये। अगला, व्हाट इज दिस? शिप व्हील या मैरिनर्स व्हील, ये पैराकॉक्सीडियोआइडोमाइकोसिस लग रहा है, ठीक है। एंड ये लास्ट वाला क्या है? ब्रॉड बेस्ड बडिंग, मतलब ये एक फंगस है एंड उसका एक ब्रॉड बड निकल के आ रहा है। कौन सा अपीयरेंस? फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस। कौन से फंगस में दिखता है? ब्लास्टोमाइसिस। वेरी गुड, ब्लास्टोमाइसिस या ब्लास्टोमाइकोसिस। तो ये तो हमने बाकी के ऑप्शंस करे। अभी स्पोरोथ्रिक्स के लिए तो हमने सिगार और एस्टेरॉइड याद करा। अगर आपको फिगर ऑफ 8 पता था, दिस मीन्स यू कुड सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो इजिली। द फिगर ऑफ 8, बिकॉज इफ यू नॉट रेड एनी ऑफ दीज आई डोंट केयर, बट अगर आपको ये फिगर ऑफ 8 वाला फोटो पड़ा है और आंसर इज सॉल्व्ड इन एग्जैक्टली 2 सेकेंड्स।
फिगर ऑफ 8 देखा, ब्लास्टोमाइकोसिस मार्क करा, आगे बढ़े। ब्लास्टोमाइकोसिस को बोलते हैं नॉर्थ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस। ये जो फिगर ऑफ 8 वाला है, दिस इज नॉर्थ अमेरिकन। आई होप यू रिमेंबर, अभी हमने पढ़ा था पैराकॉक्सीडियोआइडोमाइकोसिस। पैराकॉक्सीडियो वाज साउथ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस। ये है सिर्फ ब्लास्टोमाइकोसिस जिसके अंदर नॉर्थ अमेरिकन है। एंड हिस्ट्री में वापस जाके देखो, हिस्ट्री की ज़रूरत थी नहीं मैम, फिगर ऑफ 8 दिख गया तो आंसर तो क्लियर कट था, बट फिर भी नॉर्थ अमेरिकन था, साथ में लंग इन्वॉल्वमेंट था, साथ में स्किन इन्वॉल्वमेंट था। स्किन इन्वॉल्वमेंट का फोटो दिया, वो बस आपका टाइम वेस्ट हुआ यहाँ पर और कुछ नहीं। एज सुन एज यू सी फिगर ऑफ 8 यू आर क्लियर। नॉर्थ अमेरिकन को और क्या बोलते हैं, गिलक्रिस्ट डिजीज एंड शिकागो डिजीज। सो ऑल दीज आर डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम थिंग। तो अभी तक हमारा ये भी हो गया। अब जब सारे डायमॉर्फिक फंगस पढ़ लिए तो ऑब्वियसली ओनली वन इज लेफ्ट। मैम व्हाई डिड यू गिव सो मेनी डायमॉर्फिक फंगस का क्वेश्चंस इन द सेम एग्जाम? रीजन बीइंग के एटलीस्ट 1 एंड मैक्सिमम 2, एक तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है। तो व्हेन आई नो कि कोई टॉपिक डेफिनेटिव है, आई विल नॉट लीव इट फॉर यू, आई विल मेक श्योर दैट आई विल फिनिश इट इन क्लास। तो एक तो क्वेश्चन आना ही आना है डायमॉर्फिक फंगस से, देयर इज नो एस्केपिंग इट। तो खुद भी जब रिवीजन करो, पूरे फंगस में से सबसे पहले टॉप पे कौन सा टॉपिक रहेगा, डायमॉर्फिक फंगस, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं। Coming to this, 54-year-old farmer comes from Ohio. Ohio पढ़ते ही again everything. This came in 2020, then 2022. बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है ये। Ohio पढ़ते ही आंसर इज हिस्टोप्लाज्मोसिस। एंड यू रिमेंबर दैट, हाई डार्लिंग सी यू इन द केव, ये तो वैसे ही नहीं भूल सकते। व्हाट इज ओ हाई डार्लिंग सी यू इन द केव? ओ हाई मतलब ओहायो डिजीज हिस्टोप्लाज्मोसिस, डार्लिंग मतलब ऑल्सो नोन एज डार्लिंग डिजीज, सी यू इन द केव मतलब ऑल्सो नोन एज केव डिजीज। तो सुनने में तो इट इज साउंडिंग वेरी रोमांटिक, हाई डार्लिंग सी यू इन द केव, बट वो सिर्फ सुनने में रोमांटिक है। केव में एज सच रोमांस नहीं होने वाला, केव में होने वाले बहुत सारे बैट्स और बहुत सारी बर्ड्स। तो एक्चुअली में हिस्टोप्लाज्मोसिस जो होता है वो कैसे स्प्रेड होता है, फ्रॉम बैट एंड बर्ड ड्रॉपिंग। सो ऑल्दो आपका निमोनिक इज वेरी वेरी रोमांटिक, हाई डार्लिंग सी यू इन द केव, बट केव में एक्चुअली देयर इज नॉट गोना बी एनी रोमांस, देयर इज जस्ट गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ बैट्स एंड बर्ड्स। दे आस्क यू हिस्टोप्लाज्मोसिस कैसे होता है, बैट एंड बर्ड ड्रॉपिंग से होता है। कमिंग टू द इमेज दैट केम, अगर ओहायो की हिस्ट्री नहीं दी, बिकॉज ओहायो तो मतलब लिख दिया तो फिर तो कोई कुछ पढ़ेगा ही नहीं ना मैम। आफ्टर दैट हु इज गोइंग टू रीड ऑल दिस के कफ हो रहा है, चेस्ट एक्सरे, कोई नहीं। ओहायो आया तो हिस्टोप्लाज्मोसिस, सो दे माइट नॉट राइट ओहायो, दे विल गिव यू दिस फोटो। एंड रिमेंबर दिस फोटो इज गोइंग टू शो यू हिस्टोप्लाज्मोसिस का, याद है हिस्टोप्लाज्मा सब कुछ टीबी जैसा कराता है। तो अगर आप देखो पेशेंट को कफ हो रहा है, लिम्फ नोड्स हो रहे हैं, बिल्कुल टीबी जैसा लग रहा है, लंग्स में कैविटी बन रही है, ये भी टीबी जैसी सिचुएशन है। क्लिनिकली मुझे लगा पेशेंट को टीबी है। तो सिमिलरली उसका जो मैक्रोकोनिडिया का नाम है वो भी टीबी वाले मैक्रोकोनिडिया, मतलब टीबी जैसा नाम रखा गया है। सो दिस इज नोन एज, ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स निकल के आ रहे हैं, दिस इज नोन एज द ट्यूबरक्यूलेट मैक्रोकोनिडिया। सब कुछ टीबी जैसा। रिमेंबर हिस्टोप्लाज्मोसिस एंड टीबी कजन ब्रदर्स, एक फंगस है एक बैक्टीरिया है, बट बाकी सब सेम। क्लिनिकल फीचर्स दोनों के सेम। नेक्रोसिस बता सकते हो दोनों की कौन सी होती है? केशियस नेक्रोसिस दोनों में होती है, मतलब टीबी में भी होती है, हिस्टोप्लाज्मा में भी होती है। तो नाउ आई रियलाइज के टीबी और हिस्टोप्लाज्मा भाई भाई, दे आर टोटली लाइक कजन ब्रदर्स। तो अब मुझे, दिस इज अ स्लाइड विच आई हैव केप्ट एज अ बोनस स्लाइड, मैंने आपको इसमें से सब कुछ पढ़ा दिया है। दिस इज द स्लाइड वेयर आई हैव टॉट यू एवरीथिंग, मैंने हर चीज़ के ऊपर आपको एक एक क्वेश्चन दिया है। सो यू हैव डन इट विद मी। डायमॉर्फिक फंगस ये बस आपके लास्ट डे के रिविजन के लिए है कि जब इतना भी टाइम लाइक यू नो ना, एक टाइम आता है एग्जाम से 5 दिन पहले जब 5 स्लाइड भी नहीं पढ़ सकते मैम, एक स्लाइड में मुझे पढ़ना है। तो आई हैव टॉट यू एवरीथिंग, ट्यूबरक्यूलेट, झाड़ू से मार मार के लाल करना, द मिक्की माउस पायलट व्हील, सिगार, एंड देन आई हैव टोल्ड यू के रोज गार्डनर, ये सारा कुछ हो चुका है। दिस स्लाइड आई एम एडिंग इन द पीडीएफ, रीजन बीइंग कि आप अपना पीडीएफ पूरे क्वेश्चंस करने के बाद ये वाली स्लाइड खुद से रिवाइज कर लोगे, सो दिस विल बी सेटल्ड। ओके, हम पढ़ सब चुके हैं। Right, moving on to the next question. There is a 30-year-old male patient HIV positive. फिर वही है, फीवर आया, हेडेक आया एंड नेक स्टिफनेस, स्टोरी बन चुकी है। HIV पॉजिटिव पेशेंट, नेक स्टिफनेस मतलब एग्जामिनर इज थिंकिंग ऑफ मेनिंजाइटिस, एंड अगली लाइन में ही पता लग गया लंबर पंक्चर हुआ, एग्जामिनर इज पक्का थिंकिंग ऑफ मेनिंजाइटिस। HIV पॉजिटिव पेशेंट विद मेनिंजाइटिस, आई विल बी थिंकिंग ऑफ व्हाट? आई विल बी थिंकिंग ऑफ क्रिप्टोकोकस, राइट? व्हाट विल वी बी थिंकिंग ऑफ? HIV पॉजिटिव पेशेंट विद मेनिंजाइटिस, क्रिप्टोकोकस, कौन सा वाला? क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिन्स। एंड उसके लिए कौन सा स्टेन यूज होता है?
India ink stain. Okay, now what I'll do, I will give you one flashcard of Cryptococcus because इस पे भी एक क्वेश्चन तो आना ही आना है वाला सिचुएशन ना. तो फॉर एवरीथिंग लाइक आई सेड, अगर 50 है तो हम 50 to 60 स्लाइड्स में आज सारा डिस्कशन खत्म करेंगे. व्हेन यू विल गेट द PDF यू विल रियलाइज कि 50 क्वेश्चंस के लिए 60 ही स्लाइड्स थी और उसी में सारे फ्लैश कार्ड्स रेडी हो गए. सो नाउ यू विल सी कि अच्छा ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में आता है तो पेशेंट विल ऑलवेज बी HIV पॉजिटिव. एंड क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस क्या डिजीज कराता है? पेशेंट को हमेशा मेनिंजाइटिस होगा. दे विल ऑलवेज से अच्छा लंबर पंक्चर करा. लंबर पंक्चर करा मतलब कौन सा सैंपल मिला? CSF का सैंपल मिला. ऑब्वियसली CSF के सैंपल के लिए कौन सा स्टेन लगाते हो? नेगेटिव स्टेन. अब ये वाली स्टोरी यू विल लिसन वेरी केयरफुली. नेगेटिव स्टेन पे आएगा क्वेश्चन. एक तो क्वेश्चन आता है नेगेटिव स्टेन के एग्जाम्पल्स बताओ. क्या लिखा था वहां पे? इंडिया इंक. दूसरा एग्जाम्पल बताओ. इफ इंडिया इंक विल नॉट बी रिटन, नाइग्रोसिन स्टेन विल बी रिटन. ये दोनों नेगेटिव स्टेन. पहले तो रटने वाला काम करो. व्हाट आर द टू स्टेन्स ऑफ नेगेटिव स्टेनिंग? इंडिया इंक स्टेन, नाइग्रोसिन स्टेन. अब समझने वाला काम करो. व्हाट इज नेगेटिव? यूजुअली मैम लेट्स अज्यूम आप कोई भी स्टेन करते हो, पिंक, ब्लू, ग्रीन, येलो, यू स्टेन द बैक्टीरिया और द फंगस. आप उसके ऊपर कलर लगाते हो. Here you have used negative. Negative means you have not stained the fungus. You have stained the background. आपने opposite काम करा. Negative जैसे वो कैमरा की रील में नेगेटिव होता था ब्राउन कलर का olden days, I hope you remember. तो सेम वे जो बैकग्राउंड को आपने स्टेन करा, उल्टा काम करा, नेगेटिव. तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ नेगेटिव स्टेन, यू गिव मी एन आंसर. बैकग्राउंड इज स्टेन्ड और ऑर्गेनिज्म इज स्टेन्ड. व्हाट इज स्टेन्ड? नेगेटिव मतलब उल्टा काम करा मैम. बैकग्राउंड में स्टेन करा, ऑर्गेनिज्म इज अनस्टेन्ड. राइटिंग इट डाउन फॉर यू सो दैट यू रिमेंबर. नेगेटिव स्टेन का मतलब होता है बैकग्राउंड को आपने स्टेन करा, ना कि ऑर्गेनिज्म को. यस, दिस इज द क्वेश्चन दैट यू विल गेट. फिर वो आपसे पूछेंगे हाँ इंडिया इंक नाइग्रोसिन. तो यही तो था इस क्वेश्चन में. CSF का सैंपल था एंड HIV में मेनिंजाइटिस. यू वर थिंकिंग ऑफ क्रिप्टोकोकस, आपने लगाया नेगेटिव स्टेन. या तो इंडिया इंक होगा या नाइग्रोसिन. सेम हिस्ट्री, आई चेंज द क्वेश्चन. सेम पेशेंट, सेम HIV, सेम meningitis. Now I don't do a lumbar puncture. I say soon after having diagnosed with meningitis, patient has died. पेशेंट हैज डाइड मतलब ब्रेन का क्या किया गया होगा? अटॉप्सी. अटॉप्सी हुआ मतलब ब्रेन का पूरा टिश्यू निकाला गया. नाउ विथ स्टेन विल यू यूज? if I have got an entire biopsy of the brain, what I will be using will be the म्यूसिकार्मिन स्टेन. अब ब्रेन की बायोप्सी कौन करता है मैम? ब्रेन में से टिश्यू तो मतलब ब्रेन ट्यूमर के लिए तो करते हैं, बट फॉर एन इन्फेक्शन आई हैव नेवर हर्ड समवन टेकिंग आउट द ब्रेन. तो दैट मीन्स नॉर्मली तो हम CSF लंबर पंक्चर करेंगे, तो यूजुअली तो हम यही वाला स्टेन यूज़ करेंगे. बट मरा हुआ पेशेंट, वेरी बैड वे ऑफ लर्निंग इट, बट मरा हुआ पेशेंट अगर आएगा, मरा हुआ पेशेंट मतलब अटॉप्सी वाला पेशेंट आएगा, अटॉप्सी या बायोप्सी का कोई मरा हुआ पेशेंट आएगा, तो देन आई विल बी यूजिंग म्यूसिकार्मिन ऑन द मरा हुआ पेशेंट मतलब बायोप्सी पर, एंड CSF पर आई विल बी यूजिंग द इंडिया इंक. कमिंग टू, ये पूरी कहानी हमने पढ़ ली, ये होता कैसे? हाउ डज, लाइक आपको और मुझे भी तो हो सकता है, बट वी डोंट हैव इट. वाई? बिकॉज हमें HIV नहीं है ना, थैंकफुली. हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, बट दैट डजेंट मीन के हमारे आसपास क्रिप्टोकोकस नहीं है. वेयर इज क्रिप्टोकोकस? इट इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल. सॉइल में क्या होता है? बर्ड शिट. जो भी पिजन्स और बर्ड्स होती है उनकी शिट कहाँ जाती है? वो सॉइल में जाती है. वो सॉइल हम पार्क में, गार्डन में घूमते हुए, डू वी इनहेल दैट सॉइल? यस. आर वी इनहेलिंग क्रिप्टोकोकस? यस. तो हमारी बॉडी में जा रहा है क्रिप्टोकोकस, बट वी डोंट हैव मेनिंजाइटिस बिकॉज आर इम्यूनिटी इज वर्किंग. हमारी इम्यूनिटी काम कर रही है, आर इम्यूनिटी इज इंटैक्ट. जिनकी इम्यूनिटी काम नहीं कर रही, पीपल हु आर HIV पॉजिटिव, इफ दे विल इनहेल द सॉइल विच हैज बर्ड शिट इन इट, विच हैज पिजन ड्रॉपिंग्स इन इट, उनको फिर मेनिंजाइटिस होगा. सो रिमेंबर, पिजन ड्रॉपिंग्स क्यों मैंने याद कराया? पहला तो ये क्वेश्चन है कि क्रिप्टोकोकस आया कहाँ से? पिजन ड्रॉपिंग से आया. पिजन बर्ड याद करा. यू विल ऑल्सो रिमेंबर द कल्चर मीडिया. कल्चर के अंदर भी बर्ड वाला वर्ड आता है. इट इज बर्ड सीड नाइगर आगार, एंड ऑब्वियसली द वर्ड नाइगर विल टेल यू कि जो कलर आने वाला है वो थोड़ा ब्लैकिश ब्राउनिश कलर आएगा. बर्ड सीड नाइगर आगार. ठीक है. नाउ बर्ड से होगा, बर्ड वाला कल्चर मीडिया यूज करेंगे. CSF आया तो नेगेटिव स्टेन करेंगे, मरा हुआ पेशेंट आया तो म्यूसिकार्मिन करेंगे. जो भी करो फाइनल ट्रीटमेंट से पहले, मैंने इफ यू रिटन द ट्रीटमेंट, बट अगर मैंने पूछा विच इज़ द बेस्ट टेस्ट बता दो, कि ये सारा तो छोड़ो, बेस्ट बताओ क्रिप्टोकोकस को, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बोल लो, बेस्ट वाला टेस्ट बोल लो, क्या करोगे? व्हाट आर यू गोइंग टू डू? दिस इज अ मेडिसिन क्वेश्चन, सो आई एम कंप्लीटिंग इट ओवर हियर. क्विकली लेट मी नो.
Many of you will say we will do latex agglutination test, which is the purana wala answer. What we prefer from latex agglutination test nowadays is lateral flow assay. LFA जिन सब ने लिखा है, lateral flow assay is preferred. And now telling you an update जो अभी बिल्कुल जो बहुत ही recent है, like 1-2 महीने वाला, we've not changed rapid revision in 1 to 2 months. तो वो वाले updates I'm telling you right now. There is ELISA. ELISA is considered to be even better. एंड स्पेशली अगर एलाइजा कौन से सैंपल पे करा, CSF सैंपल पे करा, क्योंकि पेशेंट को मेनिंजाइटिस है, दैट इज इवन बेटर देन लैटरल फ्लो ऐसे. सो नाउ मैम व्हाट डू आई मार्क इन द एग्जाम, डिपेंडिंग. अगर आपको ये तीनों ऑप्शंस दिए हैं तो आप बेस्ट वाला आंसर सिलेक्ट करो. मान लो एलाइजा वाज नॉट देयर इन द ऑप्शंस, फिर क्या मार्क करके आओगे, लैटरल फ्लो ऐसे. मान लो ये दोनों ही नहीं है, फिर क्या मार्क करके आओगे, लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट. तो दीज आर द बेस्ट टेस्ट. टेस्ट हो गए, डायग्नोसिस बन गई, अब आया ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट एवरीवन हैज टोल्ड मी, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी चलेगा. ये इस बार का INICT क्वेश्चन था, लास्ट टाइम का FMG क्वेश्चन भी था. लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी प्लस फ्लूसाइटोसिन, ये तो स्टार्टिंग में चला, कुछ बाद में भी चलता है. मेंटेनेंस के लिए फ्लूकोनाजोल भी चलता है. फ्लूकोनाजोल इज फॉर मेंटेनेंस. तो इस बार का द क्वेश्चन इन INICT लैंग्वेज का ही होता है ना सारा, बाकी तो सभी को ये नॉलेज आती ही है. क्वेश्चन वाज, दिस इज अ केस ऑफ क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस, व्हाट विल बी द बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट. स्टूडेंट्स को लगा ट्रीटमेंट पूछा, सब कुछ मार्क कर दिया. उन्होंने लिखा था बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट. तो इनिशियली क्या देते हैं, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी प्लस फ्लूसाइटोसिन, फ्लूकोनाजोल बाद में मेंटेनेंस में देते हैं. तो इनिशियल पूछेंगे तो सिर्फ ये दो, कंप्लीट पूछेंगे तो देन यू विल मार्क द इंटायर आंसर. इट्स ऑलवेज अबाउट रीडिंग द क्वेश्चन, बिकॉज नॉलेज और नोट्स तो सबके पास सेम है ना. हाउ यू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन मेक्स ऑल द डिफरेंस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव अ 55-year-old diabetic male presenting to the emergency department with facial swelling, nasal discharge and fever. So there is a lot of face, head and neck वाली प्रॉब्लम लग रही है. Poorly controlled diabetes is quite a strong buzzword. And nasal turbinates का necrosis है, डेथ हो रहा है टिश्यू का, blackish discharge है, sinuses में necrosis है. यहाँ तक काफ़ी मुझे लगा हेड एंड नेक का तो है, ENT का तो है, बट मेन बात यहाँ आई, नॉन सेप्टेट वाइड एंगल हाइफे सिमिलर टू फोटो. फोटो अच्छा नहीं था मान लिया, बट फोटो आपको दिया ही सिर्फ टाइम वेस्ट के लिए था, बिकॉज बाकी सारी बात तो यहाँ पे लिखी है. एज सुन एज दिस ए नॉन सेप्टेट वाइड एंगल, तो वो क्या बनता है मैम, दैट बिकम्स म्यूकर. बट म्यूकर तो था ही नहीं कहीं. म्यूकर बिलोंग्स टू विच फैमिली, म्यूकर बिलोंग्स टू राइजोपस. राइजोपस 3 चीज़ें सेम फैमिली में आती हैं, तो प्लीज़ रिमेंबर द नेम ऑफ द फैमिली. एंड ये ना हमारे मेन वीडियोज़ में. सो मोस्टली स्टूडेंट्स आर एटलीस्ट माइक्रो के लिए, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई नो कि मोस्ट स्टूडेंट्स हैव डन रैपिड रिविजन ओनली. तो कुछ अगर ऐसा है जो मुझे लग रहा है कि आपको काम मेन वीडियोज से करना है, तो वो भी अभी करेंगे. जाइगोमाइसिटीज में 3 चीज़ें आती हैं. वन इज नोन एज राइजोपस विच इज रिटन ओवर हियर, द अदर इज नोन एज एब्सीडिया विच इज ऑल्सो रिटन ओवर हियर, एंड द अदर इज नोन एज म्यूकर. तो मैम मुझे तो ये आंसर से म्यूकर लगा, बट म्यूकर क्योंकि था नहीं. म्यूकर एंड राइजोपस सीम टू एक्ट वेरी सिमिलर, मतलब वो सेम काम कराते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है. सो रिमेंबर राइजोपस एंड म्यूकर सेम काम कराएंगे. आई विल जस्ट पुट अ ऐसा एरो कि ये क्लिनिकली सेम दिखते हैं. तो रिपीटिंग, ये 3 चीज़ें सेम फैमिली में आती है. राइजोपस हो गया, एब्सीडिया हो गया जो यहाँ पे लिखा है, एंड म्यूकर. एंड ये क्या काम कराते हैं, आई हैव लर्नड इट एज राइनो. राइनो मतलब हाँ मुझे यहाँ पे राइनो का कुछ दिख रहा था. ऑक्यूलो, बट ऑक्यूलो इज नॉट समथिंग दैट वी कैन सी ओवर हियर. एंड सेरेब्रल. 3 चीज़ें कराती है, राइनो, ऑक्यूलो एंड सेरेब्रल. यू विल रियलाइज के हेड एंड नेक में ही रहते हैं ये फंगस. तभी डू यू रिमेंबर, जैसे यहाँ तो डायबिटीज़ लिखा, डायबिटीज़ में इम्यूनिटी डाउन होता है. और कब इम्यूनिटी डाउन होता है, या तो HIV के पेशेंट में इम्यूनिटी डाउन होता है, या मैम कोई अगर स्टेरॉइड्स पे हो. जैसे याद कोविड के टाइम पे अ लॉट ऑफ पीपल हैड टेकन स्टेरॉइड्स एंड उसके बाद दे हैड सफर्ड फ्रॉम समथिंग कॉल्ड ब्लैक फंगस. जो न्यूज़ चैनल्स ने उसका नाम बना दिया था ब्लैक फंगस. व्हाट वाज ब्लैक फंगस, इट वाज म्यूकर. क्या वो ब्लैक होता है, ऐसा लग रहा है कुछ ब्लैक लग रहा है, ब्लैक फंगस नहीं होता. ये न्यूज़ चैनल वालों ने नाम बनाया था मैम ब्लैक फंगस. ब्लैक फंगस माइक्रो की बुक में नहीं लिखा. वो क्यों बनाया न्यूज़ वालों ने नाम, क्योंकि हर किसी का जो डिस्चार्ज, नोज में से डिस्चार्ज आ रहा था, स्किन में से या लीजन था, वो देखने में ब्लैक था. तो उनके कॉमन मैन ने नाम ही बना दिया कि वो ब्लैक फंगस बीमारी चल रही है. बट दैट इज नथिंग टू डू विद ब्लैक. ब्लैक फोटो में कुछ नहीं होता. म्यूकर इज नॉट ब्लैक इन कलर.
ठीक है। सो रिमेंबर म्यूकर, राइजोपस सेम सेम, जो भी ऑप्शन में लिखा होगा वो मार्क करेंगे। तो म्यूकर के लिए लिखा नॉन सेप्टेट वाइड एंगल हाइफे, वाइड एंगल मतलब ऐसे वाइड एंगल वाले, एंड नॉन सेप्टेटेड का इसका एक ऑपोजिट भी होगा ना, एंड दैट ऑपोजिट लेट मी जस्ट शो इट टू यू ओवर हियर। तो ये क्या होगा, व्हाट इज दिस, इफ आई से कि अच्छा इसकी अगर ब्रांचिंग देखो तो ये तो अक्यूट एंगल ब्रांचिंग है, इसका तो 45 डिग्री पे ब्रांचिंग चल रहा है, एंड लुक एट द लाइंस, बीच बीच में लाइन है मतलब सेप्टेट, ये क्या होगा, वेरी गुड। एस्परजिलस और म्यूकर को कैसे डिफ्रेंशिएट करें, एस्परजिलस में कैसी ब्रांचिंग होती है, 45 डिग्री वाली अक्यूट एंगल वाली ब्रांचिंग, और कैसे वाले सेप्टेट होते हैं, कैसे वाले हाइफे होते हैं, सेप्टेट हाइफे। रिपीटिंग, अक्यूट एंगल वाली ब्रांचिंग होती है एंड सेप्टेट वाले ऐसे हाइफे होंगे, अक्यूट एंगल वाली ब्रांचिंग होगी। बिल्कुल ऑपोजिट करो, अक्यूट का 90 डिग्री या वाइड कर दो, सेप्टेट का ए सेप्टेट कर दो, तो फिर हमें मिल जाएगा म्यूकर। Okay, so I think we are done with the queries. Thank you so much for joining everyone.